get stuck in the throat. नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव बजाज न्यूयॉर्क के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर, और हमेशा हमेशा आपके साथ ही रहेगा नेशन नाउ, याद रख लीजिए। एंड आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. About Yako Jambu to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And by the way, we are now being seen in Europe as well. Yes. Lots and lots of people, lots and lots of Indians watching us in Europe. At least those people who understand Hindi, and most Indians do. उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लो. Please subscribe to the channel. When you click to that icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. So Pradeep ji, as we've been saying all along over here कि भाई माशाल्लाह यहाँ क्या है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, वो तो हम पहले से ही बोल रहे थे, एक महीने से बोल रहे हैं कि ये जो मुफ्त की जो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, इधर से उधर से उधर से उधर, पाकिस्तान में गट्स नहीं है कि वो बॉयकॉट कर दे, इम्पॉसिबल। सो 15th of February, दैट इज ऑन संडे, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा साहब कोलंबो में, एंड इट विल बी द मोस्ट वॉच्ड ऑफ कोर्स, बिकॉज क्या है कि उन्होंने जो बॉयकॉट का अनाउंसमेंट किया है तो जो ब्रॉडकास्टर है उन्होंने कह दिया कि भैया वी आर गोइंग टू सू यू फॉर $300 million, सीधी बात है। और उसके अलावा आईसीसी रिफ्यूज टू बच, प्रदीप जी। बिल्कुल, आईसीसी took a very firm stand and said that if you didn't want to play, you should have informed us at least a month in advance. एक महीना पहले आप बोल देते कि भाई हम लोग नहीं आ रहे। We would have, there are plenty of countries. There are so many associate countries. One would have replaced you. ऐसी क्या बात है? And this time the ICC was prepared, absolutely prepared. Yes. What was going to be the reaction? They preempted what's going to happen, and they got ready for what to do. And that reflects Pakistan had to, fall on its knees and then agree to a match. और वही नहीं है प्रदीप जी, हमारे ये वो जो ट्रॉफी चोर हैं, क्या नाम है उसका, आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो जान करके वो नॉट आसिम मुनीर, सॉरी, क्या है, मोहसिन नकवी। आई एम सो सॉरी, माय अपॉलॉजीज। मोहसिन नकवी साहब जो ट्रॉफी चोर हैं, वो आसिम मुनीर का नाम ले रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। अरे यार, और पहले तुम अपने एयरपोर्ट तो रिपेयर कर दो, और रहीम यार खान बेस जो है तुम्हारी, उसका जो पूरी छत है जो पूरी टूट गई थी, हमारे ब्राह्मस मिसाइल जो अंदर घुस गया उसने पूरे ऐसी की तैसी, और नूर खान एयरबेस की ऐसी की तैसी कर दी थी। सर, नाउ सैटेलाइट पिक्चर्स हैव कम आउट that they have now opened up the entire roof and now they are repairing it. Actually the Americans are repairing it, not the Pakistanis. In any event, all I am saying is this is a very very funny country. बहुत मतलब क्या है, वो चुटकुलों वाला देश है। In any event, as far as the White House is concerned, that is Trump साहब is concerned, जो White House ने इंडिया यूएस डील के ऊपर जो उनका एक ट्रुथ सोशल के ऊपर जो उन्होंने रिलीज किया था, they've corrected it and brought it in line with what the Indians are saying. मतलब बार बार जो बोल रहे थे ना कि हिंदुस्तानी जो है $500 billion की चीजें खरीदेंगे, but India intends to increase trade to $500 billion, which exactly what took place between Mr. Modi and Mr. Trump when they met just after Trump's election in 2025. It's nothing new. But now they brought it in line and they have removed that thing about agriculture. American agriculture products will have to be bought by India, etc. That line has been removed. तो मेरा ये कहना है, things seem to be proceeding in that direction, but राहुल गांधी साहब says it's a sellout, अखिलेश यादव साहब says it's a sellout. वो कहते हैं कि हमारे जो किसान हैं उनकी ऐसी की तैसी हो जाने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, कैसे होने वाला है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि होने वाला है. And one US department, just to show that they support India, in the map has been talked about, showed Aksai Chin and POK as a part of India. Yes, for 4 days. It stayed for 4 days, and then ultimately after and today, a lot of protests. It's gone off today. Yes. तो यार जो भी है, it cannot be a mistake. I mean, US. That's not a mistake. No, sir, that is not a mistake. That is not a mistake. Now, let's go straight across to our guests. I think we've got a couple of very, very important guests with us. Let's go straight across to them.
कैन वी गो टू आवर गेस्ट प्लीज? ए भैया, डॉक्टर मलिक, हाउ आर यू सर? कैसे हैं सर? नमस्कार, आपकी आवाज नहीं आ रही सर? नमस्कार। एंड डॉक्टर पूजा मिश्रा, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, कहीं गए थे आपके अपने रिसर्च वगैरह के सिलसिले में? कहीं गए थे, मुझे लग रहा है कि आप हमारे चैनल पे आ नहीं रहे थे। डॉक्टर पूजा मिश्रा नहीं, तो आज 4 बजे ही वापस आए हैं जी। आई थॉट सो। कहाँ गए थे जी? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, किस जगह गए थे? ट्रम्प साहब को एडवाइस करने गए थे आप? यहाँ से बाहर नहीं जाते, हम बाहर को बहुत प्यार करते हैं। इन एनी इवेंट, लेट मी स्टार्ट विद यू डॉक्टर पूजा मिश्रा, आपसे शुरू करता हूं। आज अखिलेश यादव जी ने जो कहा यूपी के बजट के बारे में, इंडिया यूएस डील के बारे में, निर्मला सीतारमण जी के बजट के बारे में, उससे क्या हुआ, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं बड़े नाराज हो गए साहब। उन्होंने कहा लेकिन अखिलेश यादव जी अपने अपने विचार रख रहे थे ना सामने। अब विचार रखना तो क्या है, वो तो गलत है नहीं। उन्होंने कहा भाई ये देखिए यूपी का जो बजट है उसमें भी कुछ नहीं है। और दूसरी चीज उन्होंने कही, विच आई एग्री विद बाय द वे, मुझे लगता नहीं है डॉक्टर अविरल मलिक बड़े खुश होंगे मुझसे, कि जो आपने 600 या 650 बिलियन डॉलर्स का, मतलब 57 लाख करोड़ का जो एक्सपेंडिचर दिखाया है सर, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपका एक्सपेंडिचर जो है मिनिमम से मिनिमम 90 लाख या 1 करोड़ लाख तक का नहीं होगा, इंडिया में कुछ नहीं होने वाला सर। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। एंड फाइनली बाय द वे, डॉक्टर पूजा मिश्रा एंड डॉक्टर अविरल मलिक, आप दोनों डॉक्टर हैं साहब हमारे साथ, देखिए आई एम श्योर डॉक्टर पूजा मिश्रा विल एग्री विद मी। फाइनली ऑफ बजट एक्सपेंडिचर जो होगा ना आपका, this 57 lakh crores is going to go up to at least 90 lakh crores by the end of the year. So how will you balance the budget? आखिर में अगले साल we'll have to carry over more debt to the next year. That's my opinion. आप बताएं मैम। देखिए राजीव जी, जो है, जो आप कभी, हालांकि जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई थी बजट आने के बाद में, उन्हें कंबाइन किया हुआ था, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है सरकार की तरफ से, इससे पहले आप देखेंगे 2024-25 का जो बजट आया था, और वो बजट भी इसी तरीके से दिख रहा था। 25-26 का आया, उसका बजट भी यही दिख रहा था कि आपको ईयर अबाउट ईयर दर ईयर फंड बढ़ाते चले जा रहे हैं, और 25-26 का भी आया तो यही दिखाया जा रहा है कि हम बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अगर हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्रयास करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश को, तो आपको कम से कम 90 लाख करोड़ जो है दिखाना पड़ेगा खर्च, तब जाकर के आप जो जीडीपी का करेंगे, तब जाकर के आपको वो 3 ट्रिलियन डॉलर जो आपने टारगेट रखा हुआ है वो अचीव कर पाएंगे। उसके करीब तो आप दिख नहीं रहे हैं। हालांकि अभी आपने कहा कि नहीं हो सकता है हो जाए और हम डेट लेकर के चले जाएंगे, पर वो जो धरातल की सच्चाई है वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। आप पैसे एलोकेट करते हैं, फंड एलोकेशन होता है, इससे लास्ट ईयर जब एलोकेट किया गया हुआ था, अगर आप चले जाएंगे सेक्टर वाइज तो आपको पता चलेगा 50%, 60% जो अमाउंट है वो एज इट इज है, वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे हैं। तो जब आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो आप कितना बड़ा एलोकेट कर दीजिए फंड, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी भी किसान परेशान है, अभी भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कानून व्यवस्था खराब हो रखी है। सबके हालात अगर सुधर नहीं रहे हैं तो आपकी जो एलोकेशन हो रखा है फंड का, उस एलोकेशन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जिस तरीके की यूएस ट्रेड डील लोग जान ही रहे हैं, वो तो इतना कंफ्यूजन वाला मामला हो गया है राजीव जी, कि पहले होता है कि वाणिज्य मंत्री जी कहते हैं विदेश मंत्री जी से पूछा जाए, हमारे जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर कह रहे होते हैं कि आप जो है वाणिज्य मंत्री जी से पूछिए। फिर पीयूष गोयल जी सदन में कहते भी हैं, उनसे कोई सार निकल करके नहीं आता है, पता चलता है कि नहीं यूएस जो कह रहा है, यूएस के जो वाणिज्य मंत्री कह रही है वो शायद कुछ अलग कह रही है, भारत का वाणिज्य मंत्री कुछ अलग कहना चाहता है। फिर उसके बाद में हमको देखने को मिलता है कि एक एक्सपोज आता है, उस पर 15 पॉइंट्स लिखे जाते हैं, और वो बड़ा भयंकर सा पोस्ट निकल करके आता है, जिसमें आप, मुझे लगता है कि सभी को पता होगा कि कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं, हालांकि बिटवीन द लाइंस पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है सभी के लिए, नाइस सरल भाषा में सरकार ने बताने का प्रयास किया हुआ है। कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर है कि एक तो ये क्लियर है कि भारत देश को अमेरिका से 5 सालों में, अगर मैं डाटा रॉन्ग नहीं कर रही हूँ, तो 500 बिलियन डॉलर का सामान खरीदना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, ये कंपेल है। और जो सबसे बड़ी समस्या और एक चीज है कि आप कह रहे हैं कि वो 10 मेंबर्स की कमेटी बनाएंगे जो लुकआउट रखेगा इंडिया के ऊपर में कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, और इसकी अगर डाउट भी आती है तो भी अमेरिका इस पर सोच सकता है कि वो जो टैरिफ उसने घटा करके 18% दिया हुआ है,
जो यूपीए की गवर्नमेंट में 2.5 हुआ करता था, फिर बीजेपी को गवर्नमेंट में 3 पहुंचा हुआ था, फिर वो जो है इस सरकार ने, वर्तमान की सरकार ने उसको 50 पहुंचाया, फिर 50 से 25 अब जाकर के 18 की बात चल रही है। उसको 18 रखना है कि 25 करना है कि 50 कर देना है, ये जो है अमेरिका तय करेगा। और एक जो बात उसमें निकल के है कि हम इससे पहले आज तक जो है भारत ने कभी एग्रीकल्चर के फील्ड में इंपोर्ट करने का कभी सोचा ही नहीं कि हम इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो किसान प्रधान देश है और हमारे लगभग 40 to 45% जो किसान पे डिपेंड कर रहे हैं, तो लिवलीहुड किसान ही है। और आप जो है वहां से कह रहे हैं कि हम किसान वाली जो चीजें एग्रीकल्चर चीजें नहीं लेंगे, पर आप लेंगे, आप जो है सभी लोगों को पता है कि आप सोयाबीन नहीं लेंगे, बट सोयाबीन ऑयल लेंगे, सोयाबीन के चंक्स लेंगे। और आप जो है आप कह रहे हैं हम मिलेट्स नहीं ले रहे हैं, बट आप जो है गाय का पाउडर ले रहे होंगे। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। और उसमें एक कॉलम में और भी लिखा हुआ है कि एडिशनल चीजों पर भी जो है टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा, तो वो एडिशनल चीजें भी क्लियर नहीं हो रखी हुई है। तो वर्तमान में राजीव जी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो देश हो, यहाँ पे जो नजरअंदाज किया जा रहा है वो किसान को नजरअंदाज किया जा रहा है, भारत देश की जनता को नजरअंदाज किया जा रहा है। हमें किसान की, सरकार को तो किसान की बात करनी पड़ जाती है, इसलिए करनी पड़ जाती है क्योंकि किसान पे ही हमारी जो मैक्सिमम जीडीपी डिपेंड कर रही होती है। इसकी वजह से जो है बार बार किसान का नाम लेना पड़ता है, लेकिन किसान को दरकिनार करते हुए ये चाहे उत्तर प्रदेश का बजट हो चाहे केंद्र का बजट हो, वो बजट देखने को लेकिन अभी मिल रहा है। करेक्शन तो यही किया है समस्या उन्होंने मैम, डॉक्टर पूजा मिश्रा, व्हाइट हाउस ने अभी जो इनिशियल डील की जो आप बात कर रही हैं उसमें करेक्शन तो किया है, अभी करेक्शन आया है उसमें, and that is now more in line with what Mr. Piyush Goyal has said. But however, we will not know the entire thing before 15th of March. 15 मार्च के पहले कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि असल में क्या है। और जो $500 बिलियन की आपने बात करी ना, उसमें छोटी सी एक बात बता दूं आपको, जो इंडिगो और एयर इंडिया की ही जो प्लेन्स की डील हुई है, दैट इटसेल्फ इज वर्थ $150 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 years. तो 150 बिलियन डॉलर तो यहीं चले गए। प्रदीप जी, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, आई वांट टू आस्क यू, चाहे वो यूपी के बजट हो, सेंटर के बजट हो, 12 साल में मोदी जी के रिकॉर्ड जिस प्रकार से गिना रहे कि इनकम टैक्स में जो लगातार 12 लाख के रिलीफ, ये पहली बार मोदी सरकार, जीएसटी के रिलीफ, जीएसटी जिस प्रकार से कम करके लोगों में रिलीफ पैदा कर दिया, एंड सेल्स ऑनलाइन वगैरह का इंक्रीज कर दिया, ये मोदी सरकार। विकसित जो एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, चाहे वो यूएस के साथ हो या उससे पहले यूरोपियन यूनियन हो, अलग अलग देशों के साथ, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक यूपी के बजट 9 लाख करोड़, योगी आदित्यनाथ, प्रो डेवलपमेंट। तो क्या इस चीज को आप नजरअंदाज कर सकते हो डॉक्टर पूजा मिश्रा? प्रदीप जी, नजरअंदाज कर ही नहीं है, किया ही नहीं जा सकता है ना। आप सोचिए, आपको शायद जानकारी नहीं होगा, 24 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों ने काला दिवस मनाया था। अभी पिछले हफ्ते की बात है, गन्ना किसान धरने पे बैठे हुए थे, उनको वाजिब दाम नहीं मिल रहा था। आप कह रहे हैं हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल क्या, जीएसटी का कट ऑफ हिस्टोरिकल है, जीएसटी का इम्पोजिशन भी तो हिस्टोरिकल ही था। आप कह रहे हैं कि हम पहले दाम को लेकर के जाएंगे 100 रुपए, 20 से उठा करके सीधा 100 लेकर के जाएंगे और उसकी चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद में 100 से हम उसको कर देंगे 95 कर देंगे, 90 कर देंगे, और उसके बाद में हम चाहेंगे कि उसका सेलिब्रेशन हो। जीएसटी इम्पोज इतना ज्यादा किसने किया होता? अब सोचिए कि जो हमारे पास ऊपर टैरिफ जो अमेरिका की तरफ से जो 3% हुआ करता था, उसको 50% लेकर के गया अमेरिका। अब उसको जो है 18% किया जा रहा है, तो हम कह रहे हैं उसको सेलिब्रेट किया जाए। आपको नहीं लगता है कि हम जब वर्ड्स के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? ये हो गया कि हम अपनी गलतियां जो है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी रेक्टिफाई सही तरीके से नहीं हो जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि उसको सेलिब्रेट किया जाए। गलती आपने की, और गलती आपने अपने खुद के मद में रह करके की। ऐसा नहीं है कि जो है विपक्ष आपको आगाह नहीं कर रहा था या आपसे प्रश्न नहीं करता, और अभी भी हम प्रश्न कर रहे हैं, और अभी भी आप डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, अभी भी आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो ये आप चाहे ये मान के चले कि आप अपने मुंह मियां मिट्ठू होते हुए खुद ही कह रहे हैं, आपने माइलस्टोन के जो है लगाया, जीएसटी इंपोज करके आपने माइलस्टोन लगाया, इन्फ्लेशन लगा करके। जब आप इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज बढ़ रहा है और जो आप कह रहे हैं कि ये फंड एलोकेट किया जा रहा है बजट में, उनको कंपेयर कर लेंगे तो आपको पता चलेगा परसेंटेज में बहुत डिफरेंस नहीं आया हुआ। जो चीजें पहले 100 रुपए की मिलती थी वो 1000 रुपए की मिल रही है, तो फंड एलोकेशन तो आपको ज्यादा करना ही पड़ेगा ना। आपने इन्फ्लेशन के साथ में, और एक तो बड़ी समस्या भारत देश के साथ में ये है कि एशियन ग्रोथ है, दूसरी जो है जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के साथ में हमारा स्टिंगफ्लेशन भी उसी तेजी के साथ में बढ़ रहा है।
अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो श्रिंफलेशन अगर घटेगा तभी जा करके हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन ग्रोथ का साइन है। जब अगर इन्फ्लेशन और श्रिंफलेशन इक्वल ही हो जा रहा है तो वो ग्रोथ का साइन नहीं होता है, वो जो है डिटोरिएशन का साइन है। और हम जो है धीरे धीरे हमारा ग्राफ गिरता चला जा रहा है। अब चाहे कितना भी आप कह लीजिए कि हम के शेप की तरक्की, के शेप कहने का आशय यही होता है कि जो अमीर है अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है गरीब होता जा रहा है। देश की 99% संपत्ति अगर देश के सिर्फ 1% लोगों को दे करके आप कहिए कि देश हमारा पूरा माइलस्टोन कर लिया वो, तो फिर ऐसा माइलस्टोन नहीं चाहिए देश को। Right, देश so let को me, चाहिए कि जो देश पे संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन वो के शेप ना होकर के सभी के बीच में रहे, सबकी तरक्की हो रही। आपके किसान बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको जो है मिल ही नहीं पा रहा है, यूरिया नहीं मिल पा रही, डीएपी नहीं मिल पा रही, और आप कह रहे हैं हम माइलस्टोन कर रहे हैं। हम आप जो है आपको हेल्थ सेक्टर को लेकर के आपको कोर्ट ऑटो सुमो ले लेकर के बुला रहा होता है। आपको जो है उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, ऑटो सुमो लेकर के आपको लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोर्ट बुला रहा होता है, और आप कह रहे हैं कि हम माइलस्टोन कर रहे हैं। मैं कहूंगी जिन्होंने भी न्यूज नहीं देखा क्रॉस चेक कर लीजिए। अभी पिछले हफ्ते तक जो है गन्ना किसानों का प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश में चल रहा था, उन्होंने जाकर के वहां पे काला दिवस मनाया हुआ है। वो सारी चीज को साइडलाइन कर दिया, सबसाइड कर दिया। जब माने चाहे वो प्रधानमंत्री जो कहते तो है हम किसान की बात करना चाहते हैं, पर वो करना नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी एमएसएमई है आपको पता है? उत्तर प्रदेश में 80 लाख एमएसएमई हैं। उनमें से रजिस्ट्रेशन कितने का हो रखा है आपको पता है? 10% का। 10 सालों से जो एमएसएमई हो रखी हुई है उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तक ही कंप्लीट नहीं कर पाए हुए हैं, और उसके नाम पर डंका बजाना चाहते हैं। तो जब तक आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आप डंका किस नाम से बजा रहे हैं? हमारा जो उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, जो प्रैक्टिकल सच्चाई है, जो एक्सपेरिमेंटल है, वो हमारे हाइपोथेसिस है, यानी कि जो प्रेजेंट किया जा रहा है सदन में ऑन द डॉक्यूमेंटेशन उससे कहीं अलग है, और इसीलिए प्रश्न बनता चला आता है। बट डॉक्टर पूजा मिश्रा, isn't that true? That has been true since 1980. 1980 से अभी तक वो it is absolutely true. Let me go to उज्जवल पाठक साहब। पाठक साहब, मुझे अभी तक याद है 1981 में मैं अभी जर्नलिज्म में आया था, 1981 की बात है। उस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे वेंकट रमन साहब, जो बाद में प्रेसिडेंट बने। इंदिरा जी ने उनको भेजा था आईएमएफ के साथ एक डील करने के लिए। छोटी सी बात है सर, सॉरी, आपको शायद याद ना हो, आप तो बहुत यंग आदमी हैं, आप सभी लोग यंग हैं यहाँ पे। मिस्टर वेंकट रमन वॉज एबल टू नेगोशिएट अ डील वर्थ $5.68 बिलियन। $5.68 बिलियन का लोन 1981 में भारत को मिला था। इट वॉज द हाइएस्ट लोन फॉर एनी कंट्री एट दैट टाइम, 1981 में। वी हैव रीपेड इट, सब कुछ हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन उस वक्त भी मुझे याद है, अटल जी की स्पीच याद है 1981 की, भारत को बेच दिया। अडवाणी जी की स्पीच याद है, भारत को बेच दिया। चौधरी चरण सिंह, हमारे किसान जितने हैं सब लुट जाएंगे, मर जाएंगे। सर, तो ये चीज जो है बार बार वही आती है। जब भी भारत कोई नई चीज करता है, भले कांग्रेस कोई नई चीज करे, 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मार्केट्स को लिबरलाइज किया। पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब भी यही बात आई थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से, कम्युनिस्टों की तरफ से, डीएमके की तरफ से, एनआरडीएमके की तरफ से, सबकी तरफ से यही बात आई थी। तो जब भी कोई नई चीज आती है यही बात सामने आती है। हाँ, इस बार का जो बजट है, आई एग्री विद डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, 57 लाख करोड़ का जो एक्सपेंडिचर है बहुत कम है। मैं मानता हूं इससे कुछ नहीं होने वाला, लेट्स बी वेरी क्लियर। अब आप बोलें सर, आप ये बताइए, जब राहुल गांधी जी ये बोलते हैं कि किसानों को बेच दिया, मोदी जी हैज बाउड इन फ्रंट ऑफ ट्रंप के सामने झुक गए वगैरह वगैरह वगैरह, तो इससे क्या तात्पर्य है सर? उज्जवल पाठक जी प्लीज। देखिए, तत्कालीन समय की आपने बात की, जब एलपीजी मॉडल लागू किया गया, उससे पहले 1981 में जब लोन लिया गया, देखिए उस समय परिस्थितियां थी, देश जान रहा था कि क्या परिस्थितियां हैं। हम कहीं ना कहीं एक व्यापार घाटे के से, एक कहीं ना कहीं चालू खाता घाटे से, तमाम संकटों से जूझ रहे थे। तो देश के पास एक परिस्थिति थी। लेकिन आज देश ये पूछ रहा है कि जब ट्रंप ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया, उसके बाद हमारे सतत रूप से एफटीए हुए कई कंट्रीज के साथ, ट्रंप के टैरिफ के बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया से टैरिफ एफटीए हुआ, यूएई से हुआ, ब्रिटेन से हुआ, कई देशों से हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हुआ, गंतव्य मिला, और हम प्रयास कर रहे हैं अपने निर्यात गंतव्य को बढ़ाने के लिए, ठीक है। परंतु ऐसा कौन सा
इनके पास मुद्दा रहा है, ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि जो डील 11 महीने से 12 महीने से अटकी हुई थी केवल इस मुद्दे पर कि हम अपने एग्रीकल्चर को ओपन नहीं करेंगे, कृषि क्षेत्र को नहीं खोलेंगे, रातों रात ये डील कैसे फाइनल हो गई? यहाँ विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्योंकि हमको भी जनता ने चुनकर भेजा है कि राष्ट्र हित में, देश के किसानों के हित में, देश के छोटे उत्पादकों के हित में, एमएसएमई के हित में बात करें, तो कहीं ना कहीं हम तो सवाल सरकार से ये पूछ रहे हैं कि रातों रात आपने ऐसी डील क्यों फाइनल की जिसके लिए आप स्वयं कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में सहमत नहीं थे। मीडिया, बड़े बड़े मीडिया के संस्थान और स्वयं एम जयशंकर जी भी कहते थे, जाकर के ग्लोबल फोरम्स में, वैश्विक मंचों पर जाकर कहते थे कि हमें किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं है, भारत किसी भी प्रकार के समझौते के लिए जल्दबाजी नहीं करेगा, हम अपने कृषि क्षेत्र को, हम अपने छोटे उत्पादकों के लिए, उत्पादकों को कहीं ना कहीं संरक्षित करेंगे। लेकिन आज फिर आप अपनी ही बात से क्यों मुकर गए? तो ये अगर इस प्रकार का यदि तथ्य सामने आएगा तो देश का विपक्ष सजग है, सशक्त है और जनता के मुद्दों के लिए। सर ये बात तो वाजिब है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उज्जवल पाठक साहब जो आप बोल रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, और उसमें ना ही कोई वाद विवाद की कोई बात है। अभी जैसा डॉक्टर पूजा मिश्रा ने कहा, और अभी जो आप बोल रहे हैं कि भाई विपक्ष का काम है पूछना और सरकार का काम है जवाब देना, तो सरकार को जवाब देना होगा कि आपने किसानों को कैसे प्रोटेक्ट किया, कैसे उनको सुरक्षित रखा, और इस डील में असल में क्या है। नाउ प्रॉब्लम इज दिस, इवन द गवर्नमेंट डज नॉट नो व्हाट इज इन द डील। डील तो सब 15 मार्च के पहले फाइनलाइज होगी नहीं, जहां तक मैं जानता हूं। प्रदीप जी। उज्जवल पाठक जी, बीजेपी द गवर्नमेंट ने क्लियर कट कहा $30 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल हमने क्रिएट किया है। $30 ट्रिलियन एक्सपोर्ट, जीरो टैरिफ ऑन फार्मा, स्पाइसेस, एंटी, जेम्स, डायमंड, ज्वेलरी, वहां पर राहत है लोगों को। रेसिप्रोकल जो टैरिफ सिस्टम है, इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोबेबली जीरो टैक्स होगा। बट उनका कहना है कि राहुल गांधी जी जो अभद्र तरीके से सड़क चाप लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इन पार्लियामेंट, आउटसाइड पार्लियामेंट, राहुल गांधी जी को सिर्फ झूठ बोलना है और फिर विदेश जाना है, और विदेश जाके भी वहां से इंडिया को, देश को बदनाम करना है। नाउ सी द पोटेंशियल, $30 ट्रिलियन का पोटेंशियल क्रिएट किया है। उज्जवल पाठक साहब। नहीं, बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं कि हम $30 बिलियन का पोटेंशियल ट्रिलियन सर ट्रिलियन 30 ट्रिलियन दैट इज 30,000 बिलियन 30 ट्रिलियन। हाँ नहीं, तो अमेरिका तो व्यापार समझौते में घोषणा कर रहा है कि हम $500 बिलियन का भारत में करेंगे 5 साल में, लगभग इसको सालाना रूप चेंज कर दिया, 9 लाख करोड़ रुपया, 9 लाख करोड़ रुपया वो हमारे, वो चेंज। आपका आवाज थोड़ा, हाँ बोलिए सर, आप बोलिए प्लीज कंप्लीट बोलिए पाठक साहब प्लीज। बिल्कुल, मतलब 9 लाख करोड़ रुपया हर साल अमेरिकी सामान, 9 लाख करोड़ रुपए की लागत का सामान भारत में आएगा। लेकिन भारत ने इस समझौते में ये नहीं बताया कि हमारा माल कितना जाएगा अमेरिका। भाई आप मेक इन इंडिया कह रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया कह रहे हैं, पीएलआई योजना का क्या होगा? भाई पीएलआई योजना के तहत आप इतना फंड निकाल रहे हैं, अपने कारोबारियों को दे रहे हैं, उनका क्या होगा? भाई भारत में हम पहले ही कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट में चाइना से एक संकट महसूस कर रहे हैं। लगभग $100 अरब का व्यापार घाटा है हमारा चाइना से। अमेरिका से कहीं ना कहीं हम सरप्लस पे थे, तो हमारी सरकार इसको, हम कह रहे हैं सरप्लस पे रहिए ना रहिए, लेकिन अपने किसानों का, अपने उत्पादों का संरक्षण करिए। अब $500 बिलियन का यदि माल भारत आएगा और अमेरिकी सामान की गुणवत्ता और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अगर वो जीरो टैरिफ पे या छोटे मोटे मामूली टैरिफ पे आएगा, तो क्या भारतीय सामान से, भारतीय उत्पादकों के वस्तुओं से क्या प्रतिस्पर्धा कर पाएगा? जी, तो आप इस प्रकार देश को गुमराह कर रहे हैं। कल तक जिस डील को आप करना नहीं चाहते थे, आज यदि आपने उस डील को किया तो विपक्ष सवाल पूछेगा। रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी जब किताब का नाम लेते हैं मनोज मुकुंद नरवाड़े जी की, तब इनको मिर्ची लगती है। अब हम एप्स्टीन फाइल का नाम ले रहे हैं। अडानी का जो केस चल रहा है यूएस में, अडानी कौन है? अडानी की आर्थिक रीढ़ है, और ट्रंप दबाव बना रहे हैं कि हम अडानी को जेल भेज देंगे, आपका यहाँ दाना पानी बंद हो जाएगा इंडिया में। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर, राजनीतिक करियर 10 मिनट में समाप्त कर सकता हूं। तो अब बताइए, भारत का कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री इतना कमजोर नहीं रहा है कि उसने भारत के किसानों का, भारत के उत्पादकों का और भारत के राष्ट्रीय हितों को दांव पे लगा करके कोई समझौता किया हो।
नरेंद्र मोदी जी स्वयं नहीं चाहते कि ये समझौता हो, परंतु किस दबाव में आकर कह रहे हैं, इसको देश के सामने सार्वजनिक करना चाहिए, विपक्ष को और संसद को बताना चाहिए कि देश आज किन परिस्थितियों से जूझ रहा है। व्यक्तिगत हित को साधने के लिए राष्ट्रीय हितों को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। सर लेकिन वो तभी राहुल गांधी जी दुरुस्त बात है, और मांग वाजिब है, मांग भी जायज है, मांग जायज है सर, मांग जायज है, कोई उसमें वो नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज देयर इज वन मेजर प्रॉब्लम, द डील इज नॉट फाइनलाइज्ड येट, दैट्स द प्रॉब्लम। ओनली इन प्रिंसिपल एवरीथिंग हैज बीन एग्रीड टू। एग्रीमेंट जो हुई है इन प्रिंसिपल हुई है ना, अभी उसका फाइन प्रिंट तो पढ़ने के लिए आएगा ना। जैसे अविरल मलिक साहब मैंने कहा कि इंडिगो और एयर इंडिया ने सियाटल से यानी बोइंग से, जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, इट्स द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कमर्शियल प्लेन्स, सर 150 to 160 बिलियन डॉलर्स के तो हम लोगों ने एयरक्राफ्ट के ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं, तो 500 बिलियन डॉलर में से 150 बिलियन डॉलर तो वही कम हो गए। तो मेरा ये कहना है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और दूसरी चीज जो अभी डॉक्टर पूजा मिश्रा ने कही, सर मेरे पूरे करियर में 43 साल हो गए, 44 साल हो गए, मेरे पूरे करियर में ये शायद 100वीं बार है कि मैं देख रहा हूं कि गन्ना उगाने वाला किसान जो है वो सड़क पे आ गया, आंदोलन पे आ गया। दिस इज द 100th टाइम। मुझे अभी तक याद है चौधरी चरण सिंह की का चुनाव था बागपत में, और उस वक्त गन्ना बिक रहा था 6 रुपए क्विंटल, तो नारा दिया गया था चाहे गन्ना बिके 6 चौधरी की जय। सर तो मेरा यह कहना है, तो गन्ने के उत्पादक जो हैं उनकी डिमांड तो कभी पूरी होती नहीं। आप खुद बागपत से हैं, आपको खुद को मालूम होगा। तो जब बाकी सब लोग कहते हैं कि भैया एज फार एज फार्मिंग इज कंसर्न एक रैशनल डिस्कशन होना चाहिए ना, आप मुझे खुद बताइए अविरल मलिक साहब, गन्ना सरप्लस है और दाल हमारे यहां नहीं है। वी आर इंपोर्टिंग दाल्स फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम अमेरिका, सर बुर्किना फासो से, कीनिया से, रुवांडा से, युगांडा से, साउथ अफ्रीका से, और अभी तो बुर्किना फासो के साथ डील हुई है कि हम लोग 400 करोड़ की दाल से इंपोर्ट करेंगे। सर आप मुझे बताइए, डोंट यू थिंक देयर शुड बी समथिंग रैशनल हियर? क्योंकि किसानों के विषय में जब भी कोई बात होती है यह कहा जाता है ओ हो किसानों का शोषण हो गया, किसानों की ऐसी की तैसी हो गई, सरकार ने किसानों को बेच दिया। अब आप बताएं, वैसे आप जब ऑपोजिशन में थे आप भी यही बात करते थे, ऐसी बात नहीं है। अब बोलिए डॉक्टर मलिक प्लीज। जी देखिए, अब जहां तक विषय क्षेत्र का, तो ये गन्ने की पूरी बेल्ट है, चाहे बागपत की बात हो या मुजफ्फरनगर की बात हो या बिजनौर कैराना की बात हो, अन्य क्षेत्रों की बात हो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो लेकिन जहां तक विषय एक तरीके से किसानों का है, तो किसान अन्नदाता है, किसान का सम्मान आज भी है और भविष्य में भी रहेगा और कल भी था, और किसान का सम्मान होना अनिवार्य है। और जहां तक विषय एक तरीके से गन्ना किसानों का, तो उनकी समस्याएं निश्चित रूप से रहती हैं, और मील मालिकों से, मील से, और तमाम सारी छोटी छोटी समस्याएं उनकी रहती हैं। और बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि अधिकारी स्तर की होती हैं, वो शासन स्तर की मैं समझता हूं कि नहीं होती है। वो कुछ अधिकारियों से या फिर एक तरीके से घूसखोरी से संबंधित कई समस्या हो सकती है। तो छोटी छोटी समस्या किसानों की होती है, उन सभी समस्याओं का समाधान हो, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी में शामिल रहा है और भविष्य में भी रहेगा। और जहां तक विषय गन्ने का या दालों का, तो मैं समझता हूं, अब मैं इस चीज को कहूं कि गन्ने की जगह दाल लगानी चाहिए, एक तरीके से दाल का प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए। तो मैं समझता हूं वो चीज किसी रूप में ठीक नहीं है। मेरी ओर से कह रहा, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, कौन क्या करना चाहता है ये निश्चित रूप से उनका अधिकार है। लेकिन जहां तक गन्ने का विषय है, तो किस तरीके से गन्ने के किसान को उसका सही दाम मिले, इसकी चिंता उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार निश्चित रूप से करती रही है और करती रहेगी। और जहां तक विषय इस क्षेत्र का, तो किसान अपने विषय को लेकर बहुत गंभीर है। तो क्या आपने किसान को बेच दिया है? अभी जो पाठक साहब बोल रहे थे, पाठक साहब दिख नहीं रहे मेरे को, हाँ दिख गए अभी। पाठक साहब जो बोल रहे थे, डॉक्टर पूजा मिश्रा जी ने जो बोला, क्या मोदी जी ने किसानों के हित को नजरअंदाज करके ट्रंप साहब से जल्दी में डील कर ली? आप बताएं सर, डॉक्टर मलिक प्लीज। देखिए, वो ऑपोजिशन में है, उनकी मजबूरियां सवाल खड़े करना, वो सवाल खड़े करते रहे, उनका अधिकार भी है। लेकिन जो रियलिटी है, वो रियलिटी ये है कि हम राष्ट्रीय सर्वोपरि मानते थे और उसी के आधार पर चलते हैं। और जहां तक राष्ट्रीय हित सर्वोपरि का विषय है, तो इसमें भी राष्ट्रीय सर्वोपरि है, बिल्कुल स्पष्ट है, और किसान के हित के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मुझे तो किसी डॉक्टर अविरल मलिक साहब, राहुल गांधी जी ने क्लियर कट कहा, यू हैव सरेंडर्ड द फ्यूचर ऑफ इंडिया। राहुल गांधी जी सरेंडर्ड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू हैव सोल्ड भारत माता टू ट्रंप।
You have negotiated a bad deal, राहुल गांधी जी. Imports पहले $46 billion थे, आज आप एग्री किए $146 billion के आप इंपोर्ट करेंगे. इतना गुना 100% से ज्यादा आप जा रहे हैं. तो where is this good deal? Father of deals कैसे हो गया? You have sold India. That is what Rahul Gandhi says. Dr. Malik Shah. देखिए, मैं राहुल जी के विषय पे पर्टिकुलर कुछ नहीं कहना चाहूंगा. इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अमेरिका की अगर बात कर ली जाए या किसी मुल्क की बात कर ली जाए, क्या किसी की इतनी औकात, किसी की इतनी हैसियत है कि वो भारत माता को खरीद सके? जिस प्रकार की बात की गई है और ट्वीट किया गया है और बेचने की बात की गई है मां भारती को, तो मैं समझता हूं ये पूर्ण रूप से निराधार है, तथ्यहीन है. और जहां तक विषय मां भारती का सम्मान आज भी है, मां भारती का सम्मान भविष्य में भी रहेगा और विश्व गुरु भारत का निर्माण डंके की चोट पर होगा. प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक भारतवासी इस चीज को चाहता है और निश्चित रूप से होगा. और जहां तक विषय एक तरीके से अगर किसान की बात की गई, तो मैं समझता हूं बिल्कुल स्पष्ट है, किसान का हित हमेशा से ऊपर रहा है और किसान अपने मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर रहा है और उसके मुद्दे के साथ किसी रूप में छेड़छाड़ ना हो सकती है, ना होनी चाहिए. और मुझे भी किसी ने भेजा था अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक वहां आयोजित हुआ था प्रोग्राम, कुछ लोग शामिल हुए थे जिन्होंने इस विषय पे अपना विषय रखा, इसकी निंदा की, इसका विरोध किया. एक सेमिनार हुआ था, उसमें तमाम सारे कुछ किसान नेता भी शामिल हुए थे. तो वो लोग, मैं समझता हूँ भोले भाले लोग हैं, उन्हें भटकाने का प्रयास कुछ लोग करते हैं और अपने राजनीतिक रोटियां तो सर एक छोटा सवाल पूछ लूं आपसे. किसान नेता बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं. जब भी सरकार के साथ वो टेबल पे आते हैं, हमेशा समझौता हो जाता है, हमेशा बातचीत होती है, हमेशा तथ्यों के आधार पर. याद है सर, हमें याद है. चाहे कोई भी किसान नेता हो, मैं टिकैत साहब को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ, राकेश टिकैत जी को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ मैं इसमें. तो डॉक्टर अविरल मलिक, एक छोटा सवाल है इसके पहले कि मैं डॉक्टर पूजा मिश्रा के पास जाऊं जो कुछ बोलना चाह रही हैं. सर, आज की तारीख में हम लोगों का टोटल ट्रेड, सुनने वाली बात है, यूएस के साथ हम लोगों का जो टोटल ट्रेड है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिगर है, इज $212.3 billion. $212.3 billion. It is likely to go up to $250 billion by the end of March. इसमें $41.2 billion हमारा सरप्लस है, यानी 41.2 बिलियन डॉलर हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट के बनस्पत. मतलब यूएस हमसे $41.2 बिलियन का माल ज्यादा खरीदता है, जिसको लेकर के ट्रंप साहब बड़े उत्तेजित हो गए कि हमारा इंडिया के साथ डेफिसिट कैसे है. तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये ट्रेड डील जो जब लागू होगी, क्या इंडिया का सरप्लस वैसे ही रहेगा या हम लोग डेफिसिट में आ जाएंगे कि हम लोगों को ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा यूएस से? आपसे पूछ रहा हूं अविरल मलिक साहब. नहीं, देखिए, आप ये जहां तक विषय इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और एक और चीज इसमें शामिल होती है कि झुकना किसे पड़ा. ये झुकने की बात की जा रही है और तमाम सारी ऐसे बातें की जा रही है जो बिना पढ़े की जा रही है, बिना चीजों को समझे की जा रही है कि, और इस चीज को जान लेना चाहिए किसने घटाया, 25% किसने कम किया, घटाया किसने. आखिर अगर टैरिफ की बात कर ले 32% कम किया. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, झुका कौन है, झुकना किसे पड़ा, ये बात होनी चाहिए आखिर. जी, दुरुस्त बात है. लेट मी गो टू डॉक्टर पूजा मिश्रा. डॉक्टर पूजा मिश्रा, यू वांटेड टू से समथिंग मैम. At the moment, let me repeat, we have a $213 billion trade, $212.3 billion trade with the US per annum, likely to go up to $250 billion, in which we have a $41.2 billion surplus, ma'am. Will that remain or not? God only knows. I doubt it. Anyway, बोलिए. जी, यूएस के साथ में हम जब से ट्रेड करते चले आए हैं, हम सरप्लस में रहे हैं. हम चाइना के साथ में ट्रेड करते हैं तो हम डेफिसिट में रहते हैं. ये तो हमें पहले से ही पता है. और जो है हमें पता है कि अगर रशिया से हम तेल लेते रहेंगे तो हम जो है यूएस के साथ में सरप्लस में ही चलेंगे और तभी हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहने वाला, हमारा मार्केट स्टेबल रहने वाला है. क्योंकि ये चलता चला आया है कि यूएस के साथ में ट्रेड में हम सरप्लस में, वरना तो चाइना के साथ में हम वैसे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, हम डेफिसिट में ही रह रहे हैं. और जब यूएस के साथ में हमारी कटवट चली तो आपको पता है कि एक साल में हम $1 करोड़ डेफिसिट में चले गए थे, बस महज एक साल में चाइना के साथ में जो हमने ट्रेड किया. तो ये बहुत जरूरी है. मैंने हाथ इसलिए उठाया हुआ था ना राजीव जी, मुझे ये जो इमोशनल एंगल दिया जाता है ना, जैसे कि माँ भारती को कोई झुका नहीं सकता है, माँ भारती को कोई, अरे भाई, हम लोग जो है भारत देश के नागरिक हैं. भारत देश जो भी जिस कंट्री में रहता है उसका पूरा सम्मान करता है, पूरा सम्मान करता है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बॉर्डर्स को और जो इंटरनेशनल ट्रेड को वो उसको इमोशन से डील करने लग जाएंगे. हम आकर के बोले नहीं, कोई झुका नहीं सकता है.
कोई जो है हमारे बाउंड्री के अंदर में घुस नहीं सकता है, तो फिर हम अपनी फोर्सेस क्यों लगा रखे हुए हैं? किसी की अगर इतनी औकात ही नहीं हो रखी हुई है तो फिर हमें जो है युद्ध क्यों लड़ना पड़ जाता है अगर औकात नहीं होती? तो यहाँ पे जरूरी ये है कि आप इमोशन को साइड करिए, जो प्रैक्टिकल बात हो रही है वो धरातल पर उस पर बात करिएगा। अभी भी राजीव जी ये ट्रेड का उत्सव मनाया जा रहा था यूएस ट्रेड डील के साथ, तो ये भी भाजपा के प्रवक्ता कहते कौन झुकाया? भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रश्न है कि इस ट्रेड से भारत को क्या फायदा होने वाला है? जिस तरीके से हम वाणिज्य मंत्री का बयान हमने यूएस में सुना, उसके बाद में हम अपने देश के सुनते हैं। आप सोचिए कि वहां से हर चीजें निकल कर क्या रहे, आप कह रहे हम प्रश्न न करो, कह रहे सेलिब्रेट करिए, हमने भारत के मार्केट आपके लिए खोल रखे हुए हैं। तो हमारे तरफ से पीयूष गोयल जी ने कहा क्या कि आप सेलिब्रेट करिए, हम आपके लिए मार्केट खोल रहे हैं? नहीं कहा ना। आप कह रहे कि हम जैसे तैसे हमारे ऊपर इम्पोज कर रखा हुआ था, हम उसको कम कर पा रहे हैं, और आप सदन में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ना आप सदन में डिस्कशन कर रहे हैं, ना आप सड़क पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो फिर डिस्कशन आपसे कहाँ किया जाए? आपने राजीव जी प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे सुना था वक्तव्य, उन्होंने 97 मिनट का भाषण दिया था, जो कि लोकसभा में नहीं राज्यसभा में दिया था, और विदाउट विपक्ष दिया था। विपक्ष वॉकआउट कर गया हुआ था अपने मियां मिट्ठू ने। उस 97 मिनट में से अगर आप मुझे 1 मिनट निकाल करके बता दीजिए जिस समय उन्होंने ये बताया हो कि हमारे देश के नागरिकों को क्या लाभ होने वाला है, या फिर ये बताया हो कि हम अपने देश के किसानों के राइट को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर इस पे चर्चा किया हो कि जब जो है बांग्लादेश, हम कर टेक्सटाइल की बात करते हैं, बांग्लादेश टेक्सटाइल जो है इतना एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हम कैसे डेफिसिट में चले जा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस पे बात किया हो। उन्होंने क्या कहा कि वो रटी रटाई ऐसा लगता है कि सीडी चला दी जाती है और हम बैठ करके सुनते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी हैं। 97 मिनट में पता चला कुछ ऐसा बोल जाए जिसको हम मिस आउट कर जाए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तो जब भारत देश की बात हो, प्रैक्टिकल चीजों पे चर्चा होनी चाहिए, और जितने भी प्रश्न हैं वो लाजमी हो रखे हुए हैं, चाहे वो अभी जैसे एलओपी को नहीं बोलने दिया। आपने सोची कि सदन में हमने क्या क्या देखा? सदन में हमने देखा एलओपी का माइक बंद होते हुए 8 महिला सांसदों को ये कहा गया, कब कहा गया? ओम बिरला जी को 20 घंटे बाद। ये ध्यान आता है कि जो ये 8 महिला सांसद थी, इन 8 महिला सांसदों से माननीय प्रधानमंत्री जी को थ्रेट, माननीय प्रधानमंत्री जी को थ्रेट था नहीं, उन्होंने महिला सांसदों को बदनाम किया। उनको बोलना नहीं था, उनको पता था कि अगर बोलने जाएंगे तो एप्स्टीन फाइल। आपको नहीं लगता राजीव जी जनता को जानने का अधिकार है कि एप्स्टीन फाइल में पूरे का पूरे विश्व में आतंक मचा हुआ है, तो किसी की जो है टाइटल चला जा रहा है, किसी के ऊपर में केसेस हो रहे हैं, उस फाइल में अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम आता है तो हमें लगता है कि एक डिस्कशन करके उसको भी क्लियर आउट कर देना चाहिए। जनता को जानने का अधिकार है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ, कैसे और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके रख रखाव की जिम्मेदारी जनता के पैसे से हो रही है, उनके पैसे से नहीं हो रही है, और वो जो डील कर रहे हुए हैं वो देश की जनता के लिए कर रहे हैं। कोई भी राष्ट्र में भी एक राज्यसभा के सांसद है, मैं उनका नाम भूल जा रही हूँ, वो सदन में कह रहे थे कि हम जो है विश्व गुरु होते चले जा रहे हैं। चले ठीक है, हम विश्व गुरु हो रहे बिना शिष्य के, हमारे शिष्य कौन है अगर हम विश्व गुरु हो रहे हैं? हमारे शिष्य तो है ही नहीं, विश्व गुरु हो रहे हैं। मतलब बात तो सही है कि अगर भारत डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, नॉट ओनली विश्व गुरु, सिर्फ विश्व गुरु नहीं, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत अलॉन्ग विद विश्व गुरु। बट बात यह है कि सेंटर बजट, उसी में भी अखिलेश यादव जी कह रहा है कि हलवा कौन खा रहा है, हलवा यूएस खा रहा है। ही टॉक्स अबाउट द सेंट्रल बजट। योगी जी किसान की बात चल रही है, एमएसपी पे बात क्यों नहीं होती? चाहे सेंट्रल बजट हो चाहे स्टेट बजट हो, बताइए। बट किसान की बात चल रही थी ना, और अभी कहा गया गन्ना, अभी भाजपा के प्रवक्ता जो है दे रहे थे दाल पर ज्ञान दे रहे थे कि दाल पे, मैंने कहूंगा गन्ना, अरे दाल पता है आपको साल में एक लैंड पे एक ही बार खेती हो सकती है, उस लैंड को बेर छोड़ना पड़ता है, वरना आपको अरहर की दाल की खेती नहीं मिलेगी। जो किसान घर के परिवार से आता होगा उसको पता होगा। हमने जो है अपने अरहर की जो मोटी टहनियां होती है ना, उसको कमजोर होते हुए देखा है, उस लैंड की फर्टिलिटी को लॉस होते हुए देखा है। जो खेत हमें दाल जो है जितना देता था उससे कम होते हुए देखा है। मेरे दादा गन्ना किसान होते थे, हमने गन्ना को अपने घर से जाते हुए देखा हुआ है। तो किसानों से पूछिएगा कि जो है अब ये कितनी सरकारों की कमजोरियां रही कि किसानों को बता नहीं पाए। हम आज भी देखते उस लैंड को जब फर्टिलिटी लॉस हो रही थी,
जमीनों की आप खाद दे रहे थे, यूरिया दे रहे थे, तो आपने कभी बताया? हम लोग, आपको पता नहीं राजीव जी, जब जिसमें अरहर बोई जाती है उसका नियम ही यही है कि उसमें एक बार अरहर बोई जाएगी, उसके बाद में उसको बेर छोड़ दिया जाएगा, उसकी फर्टिलिटी जब तक रिगेन नहीं हो जाती है तब तक आप सोचे कि उस खेत से अरहर आप निकाल लेंगे उतना नहीं आने वाला है, आपका कॉस्टिंग ज्यादा लग जाएगा और प्रोडक्शन बहुत कम होगा। We know that. But you know, I'll tell you, Yogi's budget. I'll just finish this budget. Pradeep ji, one second. The budget, 1 minute. Sir, I need to make this. 25 crore. I need to Yes, make this yes. point. Problem is this. एक जमाना था हमारे विदर्भ में, महाराष्ट्र में बहुत दालें उगाया करते थे लोग, ठीक है साहब? That is because दाल जहां पे उगती है ना, आप जानती होंगी पूजा मिश्रा जी, दाल जहां पर उगती है, these are legumes. They produce nitrous oxide. They actually refurbish the soil. वहां पर क्या हुआ, अविरल मलिक साहब सुनने वाली बात है, उज्जवल पाठक की, सॉरी प्रदीप जी मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, उज्जवल पाठक की सुनने वाली बात है। हम लोगों ने क्या किया, मैं सरकारों की बात, हम मतलब सरकारों ने क्या किया, आपने शुगर केन हर जगह पे इंट्रोड्यूस कर दिया, बिकॉज इट्स अ कमर्शियल क्रॉप, एकदम फटाफट आपको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन ये भूल गए कि गन्ना जो है पूरा पानी चूस लेता है हर जगह का। सर, द होल लैंड बिकम्स बैरन। मतलब मुझे समझ में नहीं आता अभी तक लोग क्या कर रहे हैं। पिछले 50 साल से सबको मालूम है ये प्रॉब्लम है, उसके बावजूद उगाओ गन्ना उगाओ। अरे कितनी चीनी खिलाओगे लोगों को यार? प्रदीप जी प्लीज, सॉरी। Pooja Mishra ji, the point is, Yogi Adityanath in the budget 9 lakh crores, he talk about zero poverty in 2 years and $1 trillion US dollar economy. उसको हासिल करने के लिए जापान का यात्रा, सिंगापुर टूर, जस्ट टू सी दैट इन्वेस्टमेंट्स कम विद इन उत्तर प्रदेश, और नो डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने कल ही कहा 25 करोड़ लोग जो यूपी के हैं सब मेरे हैं, माय फैमिली, और देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। तो इस प्रकार से जब एक नेता कह रहा है और अखिलेश यादव जी कह रहा है कि लास्ट बजट है, जाने वाला है सरकार, हाउ डू यू सी दोनों रियलिटीज? एक तरफ योगी जी एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, अखिलेश यादव जी भी कॉन्फिडेंट, कह रहे दिस इज योगी जी लास्ट बजट। कॉन्फिडेंट नहीं है प्रदीप जी, योगी आदित्यनाथ जी कॉन्फिडेंट नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का भाषण उठा के देखिएगा, चाहे वो बजट भाषण हो, चाहे वो धार्मिक स्थल पे भाषण हो, चाहे वो बिजनेस समिट पे भाषण हो, वो करते क्या है? वो सिर्फ विपक्ष को कोसने का काम करते हो। कहते कि पहले गुंडा राज था, अब गुंडा राज नहीं रह गया हुआ है। वो कार्य नहीं बता पाते हैं। अगर वो कार्य किया कर रहे होते तो कार्यों को बता रहे होते। वो कह रहे 25 करोड़ जनता उनके लिए एक बराबर है, तो पूछिएगा कि जो है लेखपाल की भर्ती में पिछड़ों का अधिकार क्यों हनन कर लिया हुआ था? अगर उसका प्रोटेस्ट नहीं चलता तो 1700 सीटें बढ़ाई गई थी। आप सोचिए कि अगर कोई गलत कुछ नहीं था तो उसमें क्यों बढ़ाना पड़ गया। और इनकी खुद के, आपको जानकारी होगा ये कि इनके विधायक हैं बृजभूषण प्रताप सिंह, तो इनके यहाँ पे बड़े सेम नाम के विधायक सांसद खूब पाए जाते हैं। बृजभूषण प्रताप सिंह जो है इनके यहाँ पे विधायक है भाजपा के, वो जो है भाजपा के मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे यूपी के, तो उनको लेते हैं क्योंकि वो कुछ नहीं हो रहा है। इनके यहाँ पे खुद जो है द्वंद्व चल रहा है। जी now let me go to Ujjwal Pathak ji. Ujjwal Pathak ji, this is a very important question here. जो अभी दाल की बात हुई, अभी शुगर केन की बात हुई, बाकी सब चीजों की बात हुई। सर ऐसा है, मेरा सवाल अलग है। हो सकता है कि दिस may not be a popular opinion. Of course it is not, because I get abused for this every day. Let me tell you this very frankly. Sir, our farmers, हमारे जितने फार्मर्स हैं, सब लोगों को इवॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं सर। सॉरी आई एम गोइंग बैक अगेन। आप फिर बोलेंगे आप मोदी जी की तरह बात कर रहे हैं। मोदी जी भी, जैसे प्रियंका गांधी जी ने बहुत अच्छी बात करी, क्या लोकसभा में, जबरदस्त। आई हैव रियली बिकम अ फैन ऑफ हर्स। आई वाज ऑलरेडी अ फैन ऑफ हर्स, बट आई हैव रियली बिकम अ फैन ऑफ हर्स। क्या मतलब, ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट, मानना पड़ेगा। प्रियंका गांधी जी की जो रिसर्च होती है, स्टडी होती है, और जो वो भाषण देती हैं, यहां तक कि मैंने तो देखा है बीजेपी वाले भी अपलॉड करते हैं उनको। जब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो भी बड़ा ध्यान से सुनते हैं प्रियंका गांधी जी को। सर, जो प्रियंका गांधी जी बोलती है ना, आप हमेशा नेहरू जी की बात करते हैं, इंदिरा जी की बात करते हैं, अभी अपनी भी बात करिए, मैं जरा इंदिरा जी की बात कर रहा हूं। सर, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, हरित क्रांति जब भारत में आई इंदिरा जी के नेतृत्व में, तब भी उनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, कैनाल्स आ रही हैं, ये आ रही हैं, वो आ रही हैं। जो लैंडेड जमींदार बड़े बड़े थे उन सब लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। सर, आपको लगता नहीं है आज की तारीख में सब लोगों को मिलकर के, इंक्लूडिंग ऑपोजिशन पार्टी, सब लोगों को मिलकर के हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, फार्म सेक्टर के ऊपर एक अच्छी तरह एक शोध होना चाहिए कि भाई क्या है। सर, आप खुद सोच के बताइए, हिंदुस्तान में दालें नहीं होती हैं,
सर महाभारत के जमाने से हम लोग दाल खा रहे हैं और आज की तारीख में हमें दाल इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आप मुझे बताइए सर, और ये अभी से नहीं है, पिछले 40 साल से है सर। बोलिए उज्जवल पाठक जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा तो अपना दुर्भाग्य ये है कृषि के क्षेत्र में कि भारत में सबसे ज्यादा लेबर फोर्स कृषि के ऊपर निर्भर है, सबसे ज्यादा श्रम बल कृषि के ऊपर निर्भर है, और कृषि की जीडीपी में भागीदारी नाम मात्र है, मतलब 10% से भी कम है। तो ये कहीं ना कहीं एक व्यापक जनसंख्या के लिए तो खतरा है ही, और इसके साथ साथ उनकी आर्थिक सुरक्षा को खतरा। रही बात दालों की कि हमारा दालों में प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए दालों के संदर्भ में विशेषकर हमारे बुंदेलखंड में अन्ना मवेशियों की समस्या रहती, तमाम ऐसी समस्याएं रहती है। सरकार कहीं ना कहीं उनका निराकरण करने में और उत्पादन को प्रोत्साहित करने में कहीं ना कहीं पीछे है इस मामलों में, दालों के मामलों में या अन्य मामलों में। अब जैसे आपने यूएस ट्रेड डील हुई तो इसमें किसानों को नजरअंदाज किया गया, कोई भी मुद्दा हो तो उसमें तुरंत नजरअंदाज किया जाता है किसानों को, जो भी मामला होता है, जो भी वित्त आवंटन होता है, सब उद्योगपतियों को दे दिया जाता है। सरकार के कृषि से कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा इंदिरा गांधी जी के समय जब हरित क्रांति आई तो उसका विरोध किया, उसका किसने विरोध किया? उसका आम किसान ने विरोध नहीं किया, उसका आम व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, उसका बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ने विरोध किया, पूंजीपतियों ने विरोध किया और तमाम लोगों ने विरोध किया। छोटा किसान जो था वो कहीं ना कहीं उसका उत्पादन बढ़ा, उसके कहीं उत्पादन की लागत घटी, उसको उचित कहीं ना कहीं मूल्य मिला अपनी कृषि का, और वो सक्षम हुआ। आज वो इतना सक्षम है कि स्वयं किसी बिना सब्सिडी के कहीं ना कहीं उत्पादन करने में सक्षम है। आज आप समझिए जो समस्या है किसान के साथ हमारे क्षेत्र में, विशेषकर उत्तर भारत में, उर्वरक है, जो हमारे फर्टिलाइजर हैं, तमाम चीजें हैं, इनकी समस्या है। आज खाद, उर्वरक, कीटनाशक किसानों को समय से नहीं मिल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या रहती है। मुख्यमंत्री जी ने सर यूरिया नहीं मिल रहा, यूरिया कहाँ मिल रहा है सर? नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, नहीं यूरिया वगैरह नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री जी ने अपने संसदीय भाषण में न तो खाद की समस्या की बात की, न तो पानी की समस्या की बात की। अब जैसे कि सपा की प्रवक्ता बोल रही थी कि ब्रजभूषण राजपूत ने, वो मेरे जनपद का मामला है, मैं जिस संसदीय क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वहाँ 5 विधानसभाएं, उनमें से एक चरखारी विधानसभा है जिसमें ब्रजभूषण राजपूत ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को रोका। इसीलिए रोका गया क्योंकि किसानों को, वहां की आम जनता को पानी की समस्या है। जल जीवन मिशन के तहत जो घर घर लाइनें बिछाई गई थी ताकि किसानों को पानी पहुंचाया जा सके, शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सके, क्योंकि बुंदेलखंड कहीं ना कहीं सूखा एरिया, हमारे बुंदेलखंड में पानी की समस्या है। इसमें के द्वारा प्रायोजित तरीके से इतना व्यापक घोटाला किया गया कि जनता तक आज तक उसका लाभ पहुंचा ही नहीं, तो करोड़ों रुपया डकार लिया गया। इसीलिए कहीं ना कहीं इनमें कॉन्फ्लिक्ट है। बट वो जो हर घर नल से जल और जल जीवन मिशन और अनेक योजनाएं जो मोदी साहब ने लिस्ट किया और सक्सेसफुली यूनाइटेड नेशंस भी स्वागत किया है, वर्ल्ड बैंक भी स्वागत किया है, और इसके मदद से बहुत सारे डेथ्स को भी कम कर दिया है। तो डोंट यू थिंक दैट्स सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट? पाठक जी देखिए प्रदीप, बिल्कुल प्रदीप जी, कोई भी योजना हो, अब बताए, अब मैं यूएन, आपने यूएन का नाम लिया, यूएन के चार्टर सर्व स्वीकार है। यूएन में जितने भी नियम है, चाहे मानवाधिकार से लेकर, वो सर्व स्वीकार है, लेकिन आप देख लीजिए उसका क्रियान्वयन कहाँ है। स्वयं यूएन का मुख्यालय जहां बना हुआ है वो अमेरिका ही नहीं उनका क्रियान्वयन कर रहा है, आसपास के देशों को कहीं ना कहीं जीने नहीं दे रहा है। तो आप समझिए यही यहाँ है, कागजों पर योजना बहुत अच्छी है, धरातल पर क्रियान्वयन शून्य है। इसी का तो विवाद है ना। मेन चीज मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो जनरल नारावणे जी का बुक रिलीज हुआ, ऑथराइज नहीं ऑथराइज, पेंगुइन, राहुल गांधी जी स्टक, बोले कि आई स्टिक टू व्हाट जनरल नारावणे। बट जो पॉइंट मुद्दा राहुल गांधी जी उठा रहे कि मोदी जी वॉज इनडिसाइसिव, नारावणे साहब ने जब फोन किया कि चाइनीज टैंक्स आया है, मोदी साहब ने बोला टेक द डिसीजन एज यू विश, जनरल पे छोड़ा। तो इसमें व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? आप कह रहे कि राहुल जी कह रहे कि इनडिसाइसिवनेस, निर्णय नहीं लिया, क्या करना चाहिए, नारावणे जी को छोड़ दिया अपने हाल पर ना। हाउ राइट इज दिस? सब जगह वही मोदी साहब ने किया, चाहे ऑपरेशन सिंदूर, डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज, बोले कि आप करो डिसेंट्रलाइज, आप जो अथॉरिटी है आप कर लो, आई स्टैंड बाय यू, व्हाट्स रॉन्ग? उज्जवल जी, पाठक साहब बोलिए। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब निर्णय लेने की बात आती है, जब कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता दिखाने की बात आती है और उसका समय आता है,
तब ये सरकार पीछे हट जाती है। और जहां सेना पराक्रम और शौर्य के साथ पाकिस्तान को धूल चटाती है, तब ये कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व को कि हमारी सरकार में हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, बड़े बड़े कहीं ना कहीं ये लोग दावे करते हैं। लेकिन यही आप अपनी नेतृत्व क्षमता चाइना के संदर्भ में क्यों नहीं दिखा पाते? अब आप बताइए, उन्होंने अपनी पुस्तक में सीधे सीधे मेंशन किया है कि मैंने नेतृत्व का अभाव महसूस किया, मैंने अकेला कहीं ना कहीं महसूस किया इस मुद्दे पर। यदि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी है तो कैबिनेट कमेटी ऑफ डिफेंस अफेयर ये तय करेगी कि सेना क्या कदम उठाएगी और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से तमाम संबंधित तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श करेगी। उन्होंने अपने जो भी टॉप्स हैं, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो या आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अफेयर हो, फॉरेन अफेयर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, सबसे उन्होंने पूछा, इन्होंने कहा जो उचित लगे करो। तो जो आप जब ये जवाब है जो उचित लगे करो, तो फिर आप लोग पदों पर क्यों बैठे हुए हैं? उज्जवल पाठक जी, यही चीज इंदिरा जी ने सैम मानेकशॉ को बोला था 1971 में, जो उचित लगे करो। बांग्लादेश की लड़ाई में इंदिरा जी ने भी यही बोला था। सर पूरी बात सुन लें। नहीं, सर आप थोड़ा सा, मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन आप कंफ्यूज हैं। तत्कालीन सेना अध्यक्ष ने जब इंदिरा जी से पूछा था तो इंदिरा जी ने कहीं ना कहीं सलाह दी थी और इंदिरा जी ने सलाह दी थी और इंदिरा जी ने आदेश दिया था उनको कि आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटिए, बांग्लादेश 2 टुकड़ों में बांटने की बात कभी नहीं हुई थी। सैम मानेकशॉ को मैं इंटरव्यू भी कर चुका हूं। दूसरी बात सुन लीजिए सर, जब तक ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस हमारी फौज को दी गई थी इंदिरा जी द्वारा, भारत जीता। ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ वेस्ट पाकिस्तान से, बांग्लादेश बनाया गया। 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे पास थे। इंदिरा जी ने उनके बारे में कुछ नेगोशिएशन नहीं करी, चुपचाप उनको वापस दे दिया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो मसला था वहीं सॉल्व हो सकता था। बोल सकते थे वी आर नॉट गोइंग टू गिव इट, वी आर नॉट गोइंग टू गिव इवन अ सिंगल सोल्जर बैक। नहीं किया। इनफैक्ट सैम मानेकशॉ ने आकर के बोला इंदिरा जी को, अपनी बुक में उन्होंने ये कहा है और मेरे साथ इंटरव्यू में भी कहा है और अलग अलग 100 से ज्यादा इंटरव्यू दिए हैं फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने। उन्होंने आकर के बोला इंदिरा जी को हमेशा वो स्वीटी बुलाया करते थे कि स्वीटी, दिस भुट्टो हैज मेड अ मंकी आउट ऑफ यू। दिस इज व्हाट सैम मानेकशॉ सेड सर। सो ये तो हिंदुस्तान का पुराना तरीका रहा है। हमारे जितने पॉलिटिशियन हैं, वॉट एवर वी विन ऑन द बैटल फील्ड वी गिव अवे ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। ये तो शुरू से हिंदुस्तान का ट्रेडिशन रहा है सर, इसमें कोई नई बात क्या है? दिस इज ऑलवेज हैपेंड। सो व्हाट? डॉक्टर अविरल मलिक, अगर आप कहने का मतलब ट्रेडिशन रहा है तो चर्चा से क्यों डर रहे हैं? चर्चा कराइए, आप अपने तर्क रखिए। आई एग्री विद यू, वहां पे तो कोई डाउट ही नहीं है सर। वहां तो अनफेयरनेस हुई है। पार्लियामेंट में चर्चा तो करो। इंदिरा जी के टाइम पे टोटल चर्चा होती थी, पंडित जी के वक्त पे भी होती थी, तो चर्चा तो होनी चाहिए। आई एग्री विद यू सर, उसमें कोई दो राय नहीं। चाइना के साथ युद्ध चल रहा था, आई एग्री विद यू। पार्लियामेंट प्रॉब्लम लेवल पर चल रही थी सर। पार्लियामेंट सेशन में था, पार्लियामेंट सेशन में था, पार्लियामेंट का सेशन रद्द नहीं किया गया था, तब भी बातचीत हो रही थी। आई एग्री विद यू। अविरल मलिक जी, आई वांट टू आस्क यू, यहाँ इंडो चाइना बॉर्डर में एक अलग किस्सा है। आप जनरल को अथॉरिटी दे, बट मेन चीज है कि फायरिंग करे या ना करे। फायरिंग वॉज नॉट परमिटेड। तो जब तक मोदी साहब बोले उनको क्या फायरिंग करो, जनरल नरवणे फायरिंग नहीं कर सकता था, बिकॉज वो एग्रीमेंट है कि फायरिंग नहीं करेंगे। टैंक जब आता है टुवर्ड्स इंडियन बॉर्डर, तो व्हाट विल जनरल, क्या वहां ओमिशन ऑफ ड्यूटी नहीं हुआ मोदी साहब से कि ये बोले एनी ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट यू कैन फायर? ये फायर का ऑर्डर नहीं देने से क्या इनडिसाइसिवनेस सामने झलक रहा? हाउ डू यू सी दैट डॉक्टर मलिक? नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से अगर बात कर ली जाए माननीय मोदी जी की या हमारी सरकार की, तो मजबूती के साथ देश आगे बढ़ रहा है। दूसरी चीज, नरवणे जी की बात, मनोज मुकुंद नरवणे जी की जो बात की जा रही है, तो इस चीज को इन्हें जान लेना चाहिए। उस किताब के आधार पर बात कर रहे हैं जो पब्लिश ही नहीं हुई, जो अनपब्लिश्ड है, जो मार्केट में नहीं आई। उस अनपब्लिश्ड मटेरियल के आधार पे सवाल किया जाना कितना उचित है? अब कोई मेरा मटेरियल है, मैं उसको लिख के बैठा हूं, अब वो पब्लिश नहीं हुआ, कोई व्यक्ति आए और उसके ऊपर चर्चा करने लगे। अब सवाल तो ये भी है कि इनके पास आई कहां से? जो पब्लिश ऑफिशियली नहीं हुई, जब वो ऑफिशियली मार्केट में नहीं आई, तो फिर ये इनके पास कैसे आई?
सवाल तो ये बन रहा है। डॉक्टर मलिक, वो क्या है कि उसके जो एक्सर्प्ट्स हैं, मेन एक्सर्प्ट्स जो हैं, वो कैरावैन मैगजीन में छप चुके हैं, और नरावणे साहब ने ये नहीं कहा कि वो गलत है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, मेरी किताब सही है, ऐसी बात नहीं है, तो दैट इज ऑलरेडी पब्लिश सर। लेकिन मैं किसी और बात पर आ रहा हूं। माई पॉइंट इज, उस बात पर आने के पहले जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा, सर आपको लगता नहीं है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए? चर्चा क्यों नहीं कर रहे? मेरा सर, मेरी एक बात सुने, छोटी सी बात सुने। लोकसभा में आपकी मेजॉरिटी है, राज्यसभा में भी आपकी मेजॉरिटी है। राहुल गांधी जी को बोलने दें जो कुछ बोलना चाहते हैं, उनको ऑथेंटिकेट करने दीजिए, फिर प्रिविलेजेस कमेटी के सामने उनको लेके जाइए। अगर वो गलत है तो उनको सस्पेंड कीजिए, ऐसी क्या बात है? लेकिन बोलने तो दीजिए सर। ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष हैं सर। अगर ये यूके होता तो वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होते। मेरा ये कहना है, ही इज द ऑफिशियल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। सर बोलना तो हक बनता है ना, फिर नहीं तो फिर डेमोक्रेसी क्या की डेमोक्रेसी सर? अगर राहुल गांधी बोल ही नहीं सकते तो फिर क्या फायदा हुआ? आप खुद सोच के बताइए सर। दिस इज नॉट डन। तो राहुल जी कहाँ नहीं बोलते हैं? हर जगह तो राहुल जी बोलते हैं, पार्लियामेंट में राहुल जी बोलते हैं, मीडिया के सामने राहुल जी बोलते हैं, सोशल मीडिया पे राहुल जी बोलते हैं, राहुल जी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मीडिया में बोलते हैं, राहुल जी पार्टी के सांसद पार्लियामेंट में बोलते हैं, हर जगह तो बोलते हैं विपक्ष वाले, कहाँ नहीं बोलते हैं? सवाल तो ये है। चलिए अभी तो मालूम पड़ेगा, समाजवादी पार्टी हर जगह बोलती है, कांग्रेस हर जगह बोलती है, बताइए कहाँ नहीं बोलते हैं? इज योगी आदित्यनाथ जी कमिंग बैक टू रिलीजन? जैसे आज उन्होंने कहा कि वर्सेस हुमायूं कबीर, बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे, बाबरी मस्जिद किसी भी हालत में नहीं बनेगा, कयामत के दिन तक नहीं बनेगा, वो सोचते रहो, कानून फॉलो करना पड़ेगा या हम जहन्नुम में भेज देंगे। तो क्या वो हार्डलाइन स्टैंड वापस आ गए? जैसे डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, शी वाज सेइंग दैट प्रोबेबली कुछ दिखाने को है ही नहीं, अब वापस रिलीजन पे आ गए। डॉक्टर अविरल मलिक साहब, देखिए ये तो विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, वो करता रहे, और बाकी से ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये तो अमेरिका के ऊपर भी कह रहे थे, जब बढ़ा दिया अमेरिका ने तो कह रहे थे कि भाई इसने बढ़ा दिया, अब जब घटा दिया टैरिफ तो उसके बाद कह रहे हैं कि ये भी एक तरीके से अमेरिका की हार नहीं, अमेरिका नहीं झुका है। और 50% से घटा के 18% तक पहुंचा दिया, वो तब भी ने अमेरिका की हार नजर नहीं आई। तो अब ऐसे विषयों का आखिर क्या किया जा सकता है? लेकिन डॉक्टर अविरल मलिक, एक सवाल है आपसे, बहुत मुझे मालूम नहीं इसके ऊपर आप कैसे जवाब देंगे, आप तो नहीं जवाब दे पाएंगे शायद, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा उज्जवल पाठक जी और डॉक्टर पूजा मिश्रा, आप इसके ऊपर जरा ध्यान दें। सर ऐसा है, अमेरिका के जो फार्मर्स हैं ना, अमेरिका के जो फार्मर्स हैं, यूएस के जो फार्मर्स हैं, उनको तकरीबन अपने प्रोड्यूस पर और अपने ऊपर तकरीबन 85% सब्सिडी मिलती है सर, अमेरिकन गवर्नमेंट से 85% सब्सिडी। सर आप वही प्रोटेक्शन अपने फार्मर्स को दीजिए। कंपटीशन एक होना चाहिए ना सर, इट शुड बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड। आप हमारे फार्मर्स को भी उतना ही दीजिए ना, फिर कंपीट करेंगे, उनके प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट, देखते हैं किसको क्या पसंद आए। अभी क्या है, हमारे फार्मर्स डिसएडवांटेज पे हैं सर, लेट्स बी वेरी क्लियर। द अमेरिकंस, दे हैव ऑल द न्यू टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनके पास, उनके जो एप्पल्स होते हैं, उनके जो बाकी सब प्रोडक्ट्स होते हैं, दे टेस्ट बेटर बिकॉज दे आर जीएम मॉडिफाइड। अब मेरा ये कहना है कि हमारा फार्मर कंपीट कैसे करेगा? अविरल मलिक साहब, आप तो खुद फार्मिंग कम्युनिटी से आते हैं, आप बताइए कैसे कंपीट करेंगे आप यूएस के प्रोडक्ट्स के साथ? भले ही उनके ऊपर आप बड़ा टैरिफ लगा दें, लेकिन फिर भी इफ दे आर अवेलेबल हियर, दे आर अवेलेबल हियर सर। जैसे आज की तारीख में आप मुझे बताइए, एक जमाने में, आप दिल्ली वाले हैं कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, एक जमाने में एक निरूलास करके एक फास्ट फूड चेन हुआ करती थी, निरूलास। बिल्कुल बिल्कुल, दे वर द फर्स्ट टू ब्रिंग इन बर्गर्स, footlongs, pizzas and other things. आज कहाँ है सर वो? खत्म। मैकडोनल्ड आ गया, बर्गर किंग आ गया, डोमिनोज आ गया, ये सारी बड़ी बड़ी चेन्स आ गई, और निरूला साहब को बेचना पड़ गया सब कुछ। मुझे ध्यान है शायद इधर कराट प्लेस वगैरह में काफी इनका हुआ करता था, अब नहीं है सर, अब कहाँ है, अब कहाँ है आप बताइए। मेरा ये कहना है, जब ये बड़ी बड़ी चेन्स यहां पर आ जाती हैं, उसके बाद खत्म। सर बॉम्बे में, मुंबई में एक ड्यूक्स करके ब्यूटीफुल कोल्ड ड्रिंक्स हुआ करते थे, आज कहाँ है? आज सिर्फ पेप्सी है और कोक है, और अंबानी साहब जो हैं वो कैंपा को जरा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में क्या होने वाला है? ऑपोजिशन का जो डर है वो ये है कि ये बड़ी बड़ी चेन्स जो हैं अमेरिका की, वो सारी यहां पे टेक ओवर कर लेंगी। और दूसरी चीज क्या है, सबसे बड़ा डर जिसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं हो रही है, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। सर बीज नहीं मिलेगा, बीज खरीदना पड़ेगा, सारी मल्टीनेशनल से बीज खरीदना पड़ेगा, अमेरिकन मल्टीनेशनल से। दैट इज द आइडिया सर।
जब राहुल गांधी जी बोलते हैं आपने हमारा भविष्य बेच दिया है, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं ये सीड्स जो है ना, सीड्स, वो मल्टीनेशनल है। पहले जर्मनी की मल्टीनेशनल हुआ करती थी बायर करके, नाउ इट इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल दैट इज द लार्जेस्ट ओनर ऑफ सीड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, देन कारगिल, ऑल दीज पीपल। सर व्हाट आर वी गोइंग टू डू? आप बताइए ना, और अगर नहीं बता सकते तो आप अपनी लीडरशिप से बात करिए। डॉक्टर मलिक, आपको क्या लगता है? आपको लगता नहीं है कि भारत का भविष्य हमें सिक्योर करना, सुरक्षित रखना चाहिए? बोलिए सर। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारत के भविष्य का, तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे सरकार, चाहे वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी हो, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी जी हो, तो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से कृषि मंत्रालय लगातार इस चीज को लेकर पूर्ण रूप से सजग है और गंभीर है। और किसानों की जहां तक बात है, किसानों के हित के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया जाएगा। और किसान इतना कमजोर नहीं है कि कोई बाहर से आएगा विदेश से और वो उसके हित के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देगा। हमारे देश का किसान इतना कमजोर है क्या? आप बताइए। आप बताइए क्या इतना कमजोर? ठंड में आलू को सड़क पे रख करके प्रोटेस्ट नहीं कर रहा होता मैडम। नॉट जस्ट सीखिए मैडम, सिर्फ आलू को कमजोर कर दिया है आपने। सिर्फ और आलू मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पंजाब की बात नहीं कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश के जो किसान है, मार्जिनाइज किसान है। डॉक्टर पूजा मिश्रा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप महाराष्ट्र से नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होगा, उज्जवल पाठक जी आपको भी मालूम होगा, डॉक्टर अविरल मलिक को तो पक्का ही मालूम होगा। भले वो आज की तारीख में नाटक करके उनको मालूम नहीं है, मुझे मालूम है उनको मालूम है, एक एक चीज मालूम है। वो सत्यपाल मलिक के ग्रैंडसन हैं जी। सत्यपाल मलिक जी बड़े हमारे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, हमारे, मेरे तो खैर बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और उनकी वाइफ जो है वो तो ज्यादा ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी। शी वॉज, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट। आपको मालूम है दिल्ली में जो मंकी मेनेस था ना, बंदरों का जो मेनेस था, इट इज डॉक्टर इकबाल मलिक, दैट इज सत्यपाल मलिक जी वाइफ, who actually tabulated, worked on, did research on all the monkey tribes in Delhi, और उन्होंने वर्कआउट किया कि कौन सी मंकी ट्राइब कहां पर है and how to control them. She is responsible for that. She is an amazing anthropologist, by the way. But let me come to you, Dr. Pooja Mishra. Dr. Pooja Mishra, अगर आप महाभारत पढ़ें, आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी, ओरिजिनल संस्कृत में पढ़ी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। आपको मालूम है मैडम, 1800 डिफरेंट वेराइटीज कपास की मेंशन की गई हैं वेद व्यास जी द्वारा महाभारत में। कपास यानी कॉटन, 1800 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कॉटन। आज की तारीख में मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं, सिर्फ 2 वेराइटीज हैं, 2 वेराइटीज। हमारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे महाराष्ट्र के, उन्होंने किसी को बिना बताए बड़े प्यार से सीड्स बचा लिए। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और लेबोरेटरीज में अभी तक सीड्स हैं। जब से बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस की गई महाराष्ट्र में, एंड द सीड कम्स फ्रॉम मल्टीनेशनल्स मैम, तब से कॉटन फार्मर्स की यह हालत है कि विदर्भ हैज बिकम द सुसाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द होल ऑफ इंडिया। मेरा यह कहना है कि किसानों को अगर बचाना है तो सरकार को इंटरवीन करना होगा, and you have to give at least 80 to 90% subsidy. You must. If you don't, all our agriculture will go. Dr. Pooja Mishra, बोलिए प्लीज। जो आप ये बात कर रहे हैं, हमें लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, जब अमेरिका ने इम्पोज किया हुआ था टैरिफ, तब एक साफ साफ कहा हुआ था और कई बार कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि किसानों की मदद हो तो किसानों की सब्सिडी बढ़ाई जाए। अगर आप सब्सिडी इनको नहीं दे रहे हैं तो उनकी मदद नहीं होने वाली, क्योंकि हम यहाँ पे कम्पीट करने के लिए जा रहे हैं। वहां पे जो है, अब वैसे जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि यूएस में एग्रीकल्चर का क्या हालात है, पर जब से यूएस ट्रेड डील होने लगी तब से जो है मुझे लगता है कि सभी ने रिसर्च की और हमने भी रिसर्च की, तो पाया कि ये मोर देन 100% सच्चाई है कि अगर यूएस आ जाता है एग्रीकल्चर के फील्ड में कंपटीशन में, तो प्रैक्टिकल सच्चाई भाजपा के प्रवक्ता, मैंने कहा इमोशनल नहीं होकर के बोले कि कोई नहीं हरा सकता है, अब प्रैक्टिकल सच्चाई है कि हम कंपीट नहीं कर पाएंगे। उनके पास में जेनेटिकली मॉडिफाइड गाय भी हैं और वो जो है अगर आ गई तो आप जो हम लोग ग्रीन जो है रेवोल्यूशन की बात करते हैं, राजीव गांधी के टाइम के व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, वो सारे रेवोल्यूशन फिर उसके सामने टाइनी लगने लग जाएंगे। तो ये बेहतर बहुत, अगर जो चिंता है ना, तो विपक्ष की चिंता यही कि इस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है सदन में,
और हम सदन में डिस्कशन इसी सब चीजों पे चाहते हैं। और अभी शायद अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि बोल तो रहे, यहाँ बोल रहे, वहां बोल रहे, शायद इस सदन की कार्रवाई को फॉलो नहीं करते हैं। मैंने भाजपा के कई जो है प्रवक्ताओं से कहा हुआ है, जो है संसद टीवी 1 आता है जिसमें लोकसभा की कार्रवाई दिखाई जाती है। जब लोकसभा की कार्रवाई चला करे, उस डिबेट जब आप कर रहे हो तो पैरेलली आप अपडेट भी रहा करिए कि लोकसभा में एक्चुअली चल क्या रहा है, विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव क्या गया, उसको मंजूर क्यों नहीं किया गया। किरण रिजिजू जी ने क्या क्या क्या, किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि हमको तो जरूरत ही नहीं है विपक्ष की, हमारी मेजोरिटी इतनी है कि हम जो लो चाहे वो लोग पास कर सकते हैं, हम तो पास कर ही लेंगे कितना भी चलता रहे। अगर विपक्ष इतनी जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर रहा होता राजीव जी, तो किरण रिजिजू जी जो बैठ करके बात किए और 2 बजे के बाद में 2:15 बजे जो सदन जब चालू हुआ सदन और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बोले तो वो भी नहीं बोल पाते, फिर वो माइक बंद हो जाता है और फिर होता है कि डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, बट इज इट सो एसेंशियल जैसे राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी अगर नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ उजागर करना चाहता है, पूछना चाहता है, वांट द गवर्नमेंट आंसरेबल दैट यू हैव टू आंसर दीस क्वेश्चंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो क्या अलग अलग तरीके से रोकना सही है? नाउ कांट ही आस्क समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी? इट्स एसेंशियल दैट द पीपल नो कि इंडो चाइना बॉर्डर में क्या हो गया। व्हाई इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू हाइड दैट? डॉक्टर पूजा मिश्रा जी देखिए, अब अभी भाजपा के प्रवक्ता से बोल रहे थे ना कि सब चले आ रहे हैं कि वो बुक पब्लिश नहीं हुई है, वो मैटर नहीं करता है। अगर ये बात निकल करके आई है बुक पब्लिश हुई नहीं हुई, कैसे वो किसी आर्टिकल में अवेलेबल है, और जिसको कोट कर रहे थे एलओपी जी, आप सोचिए कि हमारे सदन में क्या चल रहा है। हमारे सदन में जब एलओपी किताब लेकर के खड़े होते हैं तो उनसे कहा जाता है, प्रदीप जी, कि रक्षा मंत्री जी बीच में खड़े होते हैं, राजनाथ सिंह जी बीच में खड़े होते कहते हैं ये बुक अनपब्लिश्ड है, 349 रूल का उल्लंघन है, इसलिए इस बुक को कोट नहीं कर सकते। और एलओपी कहते हैं चलो ठीक है बुक अनपब्लिश्ड है, पर जो आर्टिकल इस बुक को लेकर के लिखा गया हुआ वो आर्टिकल तो पब्लिश्ड है ना, तो हम उस आर्टिकल पर डिस्कशन कर लेते हैं, पर उस आर्टिकल पर भी डिस्कशन नहीं किया जाता है। यही समस्या है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है और उसके नेक्स्ट डे भी उसे बार बार कहा जाता है कि नहीं आपको बजट पे बोलना है तो बोलिए, आपको बजट पे बोलना है तो बोलिए। अगर आप जरा सा भी जैसे ही जो एलओपी एक लाइन बोलने जा रहे होते हैं वैसे तुरंत उनको रोक दिया जाता है। तो आप एलओपी को, विपक्ष में हमारा मानना है कि सरकार को ये मान करके चलना चाहिए कि विपक्ष वो आवाज है जो आपसे असंतुष्ट है, जो आपसे संतुष्ट है उनको तो संतुष्टि आपसे प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं, आपको तो उनको समझने की जरूरत है जो असंतुष्ट है। तो विपक्ष की आवाज जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो भारत देश की असंतुष्ट जनता है उनकी समस्याएं क्या है, और समस्याओं पर डिस्कशन नहीं हो पा रहा है। और लोकसभा में भी जो विपक्ष का हमारा आप कह लीजिए जो प्रोटेस्ट चला, हमने पहले भी कहा कि अगर आप एलओपी नहीं बोलेगा, जिसके पास में 10% जो है सीटें हैं, जनता ने इतना जो है मत दे करके वो भेजा हुआ, तब जाकर के वो स्टेटरी पोस्ट पे है, एलओपी है, उसको बोलने नहीं दिया जा रहा। कहाँ बोलेगा? जनरल नरवणे ने जिस प्रकार से कहा, भाग रही है हर सवाल से। ये सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी को पता था कि अगर मैं लोकसभा में बोलूंगा तो मुझसे एब्स्टेन फाइल पे प्रश्न होगा, मुझसे प्रश्न होगा कि जब इंडो चाइना पे जो लिखा गया हुआ है उसमें सिक्योरिटी का टाइम पे आपने क्या डिसीजन लिया हुआ था। आप बताइए कोई भी सेना अध्यक्ष पीस नहीं कायम कर सकता, वो नहीं डील कर सकता ना। देशों की बात है कि आप आइए, मैं बैठता हूँ, आप बैठते हैं, हम लोग पीस करते नहीं, ये तो सरकार का कार्यभार है ना। सेना का कार्यभार है करना है। बट मोदी जी क्या इनडिसाइसिव थे? जो मैंने उज्जवल पाठक जी से पूछा, व्हाट वाज मोदी इनडिसाइसिव इन टेलिंग जनरल नरवणे क्या फायरिंग भी कर सकते हो? कंप्लीट ऑर्डर क्या मोदी साहब नहीं दिए इसलिए जनरल नरवणे कंफ्यूज थे, बिकॉज नो फायरिंग जोन था। हाउ डू यू? वैसी बात है कि हम चाइना की बात कर रहे हैं जिसके साथ में हम ट्रेड में भी चल रहे हैं। अगर एक बार के लिए पाकिस्तान होगा, हम मानते हैं कि पाकिस्तान से हमारा कोई, हमने उनको वीजा देना बंद कर रखा हुआ है, हम नहीं जा रहे हैं, स्टील पे नहीं जा रहे हैं, हमने कोई ट्रीटी साइन नहीं कर रखी हुई। हम चाइना की बात कर रहे हैं। चाइना ऐसा हो रखा है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला व्यक्ति है। अब हमें पता तो करना पड़ेगा ना कि जो है सरकार कब उनके मुंह के राम वाली बात कर रही है, कब बगल की छुरी वाली बात कर रही है। और अगर आपने कहते हैं कि आपकी मर्जी जो आपको करिए, तो वो आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा ले लिया। ये तो जानना पड़ेगा ना सेना को कि अब जो है चाइना के साथ में, अभी जैसे यूएस के साथ में आपकी जो है चालू हुई परेशानी चालू हो जाकर के चाइना के साथ में बैठ गए ना, तो अब अगर सेना को यही आदेश रहे कि उनको जो इच्छा करे वही करे, तो सेना को गोली चलानी चाहिए थी। जब अरुणाचल प्रदेश के नागरिक को बोला कि आप तो जो है भारत देश के हैं ही नहीं, ये आपको जो है पासपोर्ट वैलिड ही नहीं है आपका, आप तो जो है साउथ तिब्बत से आ रहे हैं,
ये कहा जब चाइना ने, तब तो हमारे जो, अगर यही छोड़ दिया जाए, अगर आप सोचिए कि आप सेना में हैं और आपके छोड़ दिया जाए प्रदीप जी कि आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं, तो जब आपके देश के नागरिक को चाइना कहेगा कि नहीं, आप नागरिक ही नहीं है वहां के, आप हमारे देश के नागरिक को कहेगा एक स्टेट को, अरुणाचल प्रदेश को, कि ये तो हम साउथ तिब्बत है, ये तो भारत देश का हिस्सा है, नहीं तो आप क्या करेंगे? तो ये तो सरकार को ही जिम्मेदारी बनती है ना, सरकार ने अपना पल्ला झाड़ने का काम किया। और अगर उन्होंने फ्री हैंड छोड़ा हुआ था तो मुझे लगता डिस्कस करके बता देते। सदन में यही तो डिस्कशन चाह रहे हैं ना हम लोग, कि आपने फ्री हैंड छोड़ा, कि आपने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया या आप मुकर गए। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप में कमी थी। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी में कमी नहीं रही। या तो नरवणे जी झूठ बोल रहे हो, या विपक्ष का सवाल गलत है, या फिर जो माननीय प्रधानमंत्री जी गलत है। कोई तो एक सामने आकर के गलत होना पड़ेगा ना, दोनों चीजें तो सही नहीं हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी को खड़े होकर के हम कह रहे हैं, आप कहते हैं कि हमने, कहते हैं ना छाती से ठोक करके कि 56 इंच का सीना है, हमने अपनी सेना को खुली छोड़ दी। क्यों नहीं कह रहे हैं आप? डॉक्टर अविरल मलिक अगर आप कहना चाह रहे हैं तो हम आप बैठ कर डिबेट कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि फ्री हैंड दे दिया, आप भी कहते हैं फ्री हैंड दे दिया, तो वही माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सदन में। क्या समस्या है? क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं? ऐसा है कि सबसे पहले एक करार हुआ चाइना के साथ 1991 में, फिर उसके बाद हुआ 1996 में। 1996 में नरसिम्हा राव जी और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे चाइना के, उनके साथ करार हुआ कि पूरे साइनो इंडियन बॉर्डर पर, इट इज नॉट कॉल्ड द इंडो चाइना बॉर्डर बाय द वे, इट इज कॉल्ड द साइनो इंडियन बॉर्डर। इंडो चाइना इज साउथ ईस्ट एशिया। पूरे चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर कोई लाइव एम्यूनिशन फायर नहीं होगा। ये नरसिम्हा राव जी और जो चेयरमैन थे उस वक्त के चाइना के, उनके बीच में करार हुआ। और 1996 से लेकर के आज तक 30 साल तक एक भी बुलेट फायर नहीं हुई है चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर। तो लिहाजा नरेंद्र मोदी जी ने या राजनाथ सिंह जी ने या जो एडवाइजर सिक्योरिटी एडवाइजर साहब अजीत डोवाल, उनका तो खैर कोई रोल बनता नहीं है यहाँ पे, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। कहा कि भाई यू हैव ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, आपको जो करना हो करो, जो आपको उचित लगे। और आखिर में नरवणे साहब ने वही किया जो उनको उचित लगा। मानता हूं गलवान में हमारे कुछ सैनिक मरे, चाइना के बहुत ज्यादा मरे, हम लोगों के कोई 20 के करीब मरे, उनके कोई 48 के करीब मरे, एज रिपोर्टेड बाय इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज। लेकिन इन टर्म्स ऑफ द चाइना इंडिया बॉर्डर, दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट इज हेल्ड। अब प्रॉब्लम यह है, मैं आपसे जानना चाहता हूं अविरल मलिक साहब, अगर मान लीजिए नरवणे साहब फायरिंग का ऑर्डर दे देते, फिर तो ऑल आउट वॉर हो जाती, फिर लड़ाई करिए, फिर जो करना है करिए। क्या समझते हैं इसके बारे में आप? डॉक्टर मलिक बोलें। जी देखिए, जहां तक पूजा जी का सवाल है और उसके साथ साथ विपक्ष का विषय है, तो डोकलाम पे बहुत से सवाल विपक्ष के द्वारा किए गए। और जहां तक नरवणे जी का सवाल है, अगर मैं पूर्ण की बात करूं उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन जहां तक नरवणे जी का सवाल है, तो नरवणे जी सही व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं और टू द पॉइंट बात करने वाले व्यक्ति हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से उस मटेरियल का जो अनपब्लिश्ड है, जो मैंने एक तरीके से नहीं पढ़ा है, उस विषय में मैं जाना भी नहीं चाहूंगा और मैं उस पर जवाब भी नहीं सर, मैंने पढ़ लिया, नहीं दे सकता हूं, नहीं दे मेरे पास भी है किताब सर, किताब मेरे पास भी है। जी हाँ, बोलिए सर। टैंक वेंट, नरवणे साहब ने टैंक भेजा था और हाई एल्टीट्यूड पर टैंक देखकर चाइनीज ने रिट्रीट किया। वो एक सच्चाई भी है कि जनरल नरवणे टैंक आगे लेके गए और जो हाई एल्टीट्यूड में हमारे टैंक्स है उनके ऊपर भाजपा जो है कॉपीराइट का मुकदमा कर रही है। अगर राजीव जी आपके पास में, तो आप फिर सोच लीजिएगा। पुलिस कोई बात नहीं, अभी 114 केस हैं, 115 हो जाएंगे, कोई बात नहीं, क्या है, नो प्रॉब्लम है जी। ऑलरेडी एफआईआर फाइल हो गया दिल्ली में, सबको प्रश्न पे जवाब नहीं होगा। डॉक्टर मलिक मेरा केस लड़ेंगे ना, ऐसी क्या बात है जी, बोलिए सर। जी नहीं, देखिए कॉपीराइट का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूँ इसमें कोई सच्चाई नहीं। जहां तक विषय है, लेकिन अनपब्लिश्ड का है, तो मैंने जो नहीं पढ़ा उस पर मैं केवल नहीं जवाब दे रहा हूँ। जहां तक लेकिन विषय है नरवणे साहब का, मजबूती के साथ उन्होंने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक रक्षा मंत्रालय का विषय है, राजनाथ सिंह जी का विषय है, रक्षा मंत्री जी का विषय है, तो हम पूर्ण रूप से आज ही मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं और लगे हुए हैं। और सीमाओं की सुरक्षा प्राथमिकताओं में शामिल है और किसी प्रकार से कोई देश, कोई दूसरा मुल्क किसी प्रकार से हमारी जमीन पे कोई कब्जा करने की न ताकत रखता है, न हिम्मत रखता है, न कर सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे जाबाज सैनिक बॉर्डर पे लगे हुए। भागवत साहब, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। मोहन भागवत जी ने कहा कि सावरकर जी को अगर भारत रत्न देते हैं
तो गौरव बढ़ेगा भारत रत्न का। इट विल बी, तो किस प्रकार से स्टेटमेंट को देखते हो? ही इज प्रोफेसिंग कि इट विल बी ग्रेट इफ भारत रत्न इज गिवन टू वीर सावरकर जी, गौरव बढ़ेगा भारत रत्न का। पाठक जी, मोहन भागवत। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मोहन भागवत जी जिस संस्था से आते हैं, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जो भाजपा की मातृ संस्था रही है, इनका पहले इतिहास उठा करके देखिए। इनका इतिहास रहा है अंग्रेजों की मुखबिरी का, अंग्रेजों की दलाली का, जो राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन रहा है उसको कमजोर करने का। ठीक है, अब सावरकर जी भी कहीं ना कहीं उसमें एक महत्वपूर्ण भागीदार रहे हैं। सर वो हिंदू महासभा से थे, आरएसएस से नहीं थे। ये उसके विपरीत बोल रहे हैं, सावरकर जी को भारत रत्न देके भारत रत्न का अपमान होगा, ये उल्टा बोल रहे हैं कि सम्मान होगा। अब इनके लिए भारत रत्न किसी एक व्यक्ति विशेष से बड़ा है, तो आप इनकी मानसिकता समझिए। इनके लिए इनका राष्ट्र इनकी विचारधारा से छोटा है, विचारधारा इनकी प्राथमिक है, राष्ट्र छोटा है। तो आप समझिए आप कि जिनका इतिहास ही रहा हो राष्ट्र विरोधी, जिनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना के साथ गठबंधन करके सरकार बनाए, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान बंटवारे का और पाकिस्तान बनने के कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण घटक रहे जिन्ना जी, उनके साथ इनका उठना बैठना रहा। तो आप समझ सकते हैं। आपका भी था सर, आपका भी तो था, प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के सर जिन्ना साहब, और हमारी बॉम्बे बार एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट थे सर। ऐसी क्या बात है जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी मलिक साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? ठीक है, जब था मैं बता रहा हूँ, जब तक जी मलिक साहब हाँ बोलिए। बिल्कुल, मेरा एक छोटा सा सवाल इनसे रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और इनका अलायंस महाराष्ट्र प्रदेश में शिवसेना यूबीटी के साथ है। तो शिवसेना यूबीटी के जो नेता संजय राउत साहब और उद्धव ठाकरे साहब, वो डंके की चोट पे, पूरे ठाकरे फैमिली डंके की चोट पे इस बात को कहती है कि सावरकर साहब की पैरवी भी करते हैं, उन्हें आदर्श, प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक भी बताते हैं। और इस बात का भी इस स्टेटमेंट का मुझे लगता है संजय राउत साहब 100% सपोर्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ आखिर ये अलायंस कैसे चल रहा है कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी का? जी वो हर एक कोई पूछता है सर, अकेले आप नहीं पूछ रहे हैं, हर एक कोई पूछ रहा है महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी से कि आप यहाँ पर, यहाँ तक कि शरद पवार जी ने भी पूछा है कि यहाँ पर आकर के आप वीर सावरकर जी की बुराई क्यों करते हैं? भैया पूरे महाराष्ट्र में कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। वीर सावरकर इज अ हीरो इन महाराष्ट्र, let's be very very clear, and in lots of other areas of the country. In any event, gentlemen and Dr. Pooja Mishra, it has been a great discussion, and I hope in Parliament everybody is allowed to speak. And I hope our farmers get at least the 85% or 90% subsidy that everyone wants. Thank you very much, gentlemen. Thank you very much, ma'am. So nice of you. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार। 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 Well, that was nice at the end of the day, but the only thing is that very delightful discussion. I mean, it was power packed till the end. yeah, my only thing is that at the end of the day, the government has to decide how much of a subsidy are you going to give to your farmers. Exactly. Sir, our farmers are poor. Let's be very clear. We have a very very poor farming community. We have to do something over here. मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, वो जो 3 फार्म लॉज जो थे उनको अमेंड करना चाहिए था, and they should have been passed, and they should not have been withdrawn. आप क्या पंजाब, वेस्टर्न महाराष्ट्र और हरियाणा के फार्मर से आप डर गए, सीधी सादी बात है, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सॉरी नॉट वेस्टर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर से आप डर गए, सीधी सादी बात है सर। मेरा ये कहना, आप क्या है कि सिर्फ वीट और राइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यू हैव टू लुक एट फार्मिंग एज अ होल। और जहां तक डेयरी फार्मिंग का सवाल है, एट द मोमेंट अमूल इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, नंदिनी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, there is one particular dairy from Tamil Nadu also which is also doing a fantastic job, and so is one from West Bengal. Sir, the fact remains that you have to compete, your products have to compete. मैं बार बार इसी बात को बोल रहा हूँ कि आपका प्रोडक्ट जो है उसको compete करना पड़ेगा। जैसे आज की तारीख में आपका जो ब्रह्मोस मिसाइल है प्रदीप जी, Yes, it is being sold to so many countries. आपका जो आकाश तीर मिसाइल है, yes, a hell of a lot of countries all over the world want it. Now, that's because there's quality there. You have to produce products which are recognized as having great quality. That's it. You know, another important thing that you were telling them, the shift from sugarcane to whatever, जो भी profitable agricultural product है, that needs to be focused on, because that's a big thing. जैसे आपने जो discussion कर रहे थे, you know, immediately it cannot be done.
there's some time frame in which you allow the soil to regain its properties. Fertility. Yeah, fertility, property. So it's a big process and it has to be really सर thought. दाल जो होती है ना, सबसे बड़ी बात ये होती है, देयर इज नथिंग लाइक दाल. दीज आर कॉल्ड लेग्यूम्स. ऑल द पल्सेस, जैसे बीन्स हो गई, दाल हो गई, ये चना हो गया, ये सब चीज जो अगर आप खेत में उगाते हैं ना, इट रिप्लेनिशेस द सॉइल. शुगर कैन डिस्ट्रॉयज द सॉइल. आज की तारीख में अगर आप पंजाब में जाएं ना, तो पंजाब का जो फर्टाइल सॉइल जो बचा है, इट इज लेस देन 1 इंच, आधे इंच से कम है. रेस्ट ऑफ द सॉइल इज गॉन. इसलिए आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया, अदर आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट्स, इन सब का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है. पहले क्या होता था, पंजाब की धरती ऐसी थी, ऐसे दाने फेंको, अपने आप प्लांट्स उग जाते थे. आजकल नहीं होता सर. आज आप खेत के अंदर, जो चने का खेत होता है ना पंजाब में, बिल्कुल. आप या साग, जो जिसको हम साग बोलते हैं, आप स्पिनच, आप अपना हाथ जो है आप सॉइल में डालें और निकालें, और उसके बाद आप उसको वैसे ही रहने दें, मिट्टी को वैसे ही रहने दें, और 5-10 मिनट के बाद अपने आप हाथ धोएं. सर आपके हाथ में फिंसियाँ उग जाएंगी. You will get them here. Why? Because it is so full of chemicals. That's what we've done to our farming sector. The point is, we have to wake up to what we are doing, sir. And I agree with Modi ji, and I agree with Mr. Piyush Goyal. This is the best deal we could have got, very frankly speaking. You could not have negotiated for a better deal. The way it's going on as far as the President Trump is concerned. Even today, by the way, आज की तारीख में टाइम्स ऑफ इंडिया में तो स्टोरी आई है कि हम लोगों ने रशियन ऑयल बंद कर दिया. एब्सोल्युटली अनट्रू. $1.1 million a day are still coming. 1.1 million barrels, sorry. जहां पर 500 मिलियन बैरल आ रही थी हर रोज, आज 1.1 मिलियन बैरल्स आ रही हैं आज भी हर रोज. दे आर बीइंग रिफाइंड एंड द रिफाइंड प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड इन यूरोप. ये भी आपको बता दूं. एंड सम ऑफ देम आर गोइंग बैक टू द यूएस. ये भी आपको बता दूं. बट इन एनी इवेंट, ऑल आई एम सेइंग इज, sir, this is a great country. We have to protect it. We have to protect our farmers, but we also have to be rational and wise. आज की तारीख में less than 5% of the population of America is involved in farming. Here, 85% of our population is involved in farming. So there's a big difference. So all I'm saying is, at the end of the day, I agree with Gandhi ji here. महात्मा गांधी के बारे में, I know it is not it's not fashionable right now to talk about Gandhi ji, apart from whenever Modi ji mentions him. गांधी जी क्या बोलते थे? यूज द विलेज एज ए यूनिट. विलेज को आप एक गांव जो है उसको आप एक यूनिट की तरह इस्तेमाल करें एंड स्प्रेड अराउंड. हैव अबाउट 15-20 विलेजेस का यूनिट. लेट देम बी सेल्फ सफिशिएंट. दैट्स हाउ इंडिया विल ग्रो. आप वो भूल गए, सब भूल गए. आखिर में आपको वहीं जाना पड़ेगा. Congress will debate whether Modi ji is following Mahatma's footsteps, because he's always praising Mahatma Gandhi. He says he's my spiritual guru. So the Congress forgot. The Congress forgot Gandhi ji. Now Congress remembers Gandhi ji because of Modi ji. ये भी आप याद रख लीजिए. कांग्रेस भूल गई थी जी महात्मा गांधी को. उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं. And Prime Minister Modi, virtually hijacked Mahatma Gandhi and Vallabhbhai Patel. Yes. In any event, sir, so Ritu Tavade ji has become our mayor. Yes, sir. मुंबई की मेयर बन गई हैं unopposed. She has been elected unopposed. जबरदस्त. So for the first time ever, there she is. भारतीय जनता पार्टी has a mayor in BMC, Brihan Mumbai Municipal Corporation की मेयर जो हैं, महापौर जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की हैं. Congratulations to her. Congratulations to Mr. Amit Satam for a wonderful campaign. Fantastic. And not only that, ये भी जीते, पंचायत भी जीता, जिला परिषद भी जीते. जी. It's a clean सर मैं sweep. मुंबई की बात कर रहा हूँ. Yes. लेकिन So मुंबई you got a triple engine now. You got right from panchayat to corporations to state to center, all BJP. यस. कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, पंचायत, वो भी बीजेपी के पास. स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के पास. अब तो कोई बहाना बचा नहीं भाई. अब क्या एक्सक्यूज है? अब तो सीधी सादी बात है. एवरीबडी विल एक्सपेक्ट हर टू परफॉर्म. I don't know how she will perform, let's be very clear, because the power still rests with our friend Mr. Bhushan Gagrani, who is the BMC commissioner. जो BMC की पावर होती है साहब, वो महापौर के पास कुछ नहीं होता. हर चीज़ जो होती है BMC कमिश्नर साहब के पास होती है. ये भी याद रख लें. कोई उसमें
वो नहीं है, but congratulations to her and congratulations to Mr. Amit Satam and the entire BJP in Mumbai and all over Maharashtra. और जैसा हम कल बात कर रहे थे प्रदीप जी, चंद्रपुर में एक जगह थी जहां पे कांग्रेस का मेयर बन सकता था, वहां पर भी उद्धव ठाकरे जी ने हाथ मिला लिया, किसके साथ? बीजेपी के साथ। उद्धव ठाकरे सेना ने, उन्होंने हाथ मिला लिया बीजेपी के साथ और उनका मेयर बन गया। And the Congress never thought that we should unite, at least in Chandrapur. There they had Vijay Tiwar versus Ghanolkar, and what happened was both took their corporators along with them, and they never merged. And That's it. ultimately they lost. That's it. That's exactly what happened to the Congress over here in Mumbai. आप देखिए प्रदीप जी, 24 वार्ड में जीती है कांग्रेस, मुंबई में भी, which is an amazing figure, considering the fact that the Congress hardly worked here. इसका मतलब ये हुआ, जो हम पहले दिन से बोल रहे हैं, कांग्रेस की बहुत गुडविल है मुंबई में, मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में भी। अगर आज if Congress gets its act together, one never knows, anything can happen. Well, that's just about it. Once again, congratulations to Ritu Taude ji, Mayor of Mumbai. Congratulations to Amit Satam Sahab, wonderful job. Congratulations to Ashish Shelar Sahab, and of course to our friend Mr. Devendra Fadnavis, and of course Eknath Shinde Sahab. Shinde Sahab has also performed very well. Look at the way he has spread his wings all over Maharashtra. If you look at all the leaders, his jump has been the maximum. Fantastic. The party that is so young is spread across Maharashtra. Across Maharashtra. सर, आज तक कभी बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में भी शिवसेना को इतनी जिला परिषद नहीं मिले सर, जितने इनको मिले हैं। सीधी बात है। तो he has built upon the foundation laid by Bala Saheb Thackeray. So Uddhav Thackeray ji has to wake up, and he has to do something. I don't know what he can do, but he has to do something. Match Eknath Shinde ji's hard work. Yes. He is there everywhere. Every event in Maharashtra, Eknath Shinde is there. I think Mr. Uddhav Thackeray has one trump card left. He should rejoin the BJP. He should have an alliance with the BJP again, shake hands with Mr. Devendra Fadnavis and Mr. Modi. That's all that is left. That's the only way out. That's my opinion. It's an unpopular opinion where the Shiv Sena is concerned, Shiv Sena UBT is concerned, but I think he should shake hands with Mr. Devendra Fadnavis and Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah. That's what he should do. That's it. Otherwise, I don't see a very big future for Uddhav Thackeray Sahab. He'll have to be clever, he'll have to be astute, and he'll have to be futuristic. I hope he does. But then what do I know? That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। When you click to that icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, The fastest growing channel of the nation. That's it from both Pradeep ji and myself and the entire team here at Nation Now. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। Jai Hind.